content बना के I've bought my own house in Bombay. Guys, not flexing, but Wow. That's crazy. okay, flexing a little. Yeah. What is the highest amount of money that you have made in a month? 5 lakhs. Wow. 1 to 2 lakhs. Wow. एक महीने में मैंने किया था. I was like, Wow. Not that's great. मीन्स उसके एक महीने पहले आई वाज लाइक मेरे पास काम ही नहीं है. मैं मेरे पापा को बोल रही हूँ, पापा बोलते बेटा जॉब कर लो, तुमसे ना हो पाएगा. So I've realized one thing on YouTube, Yeah. if we talk about as a platform, rawness works. You know, if you want to crack the algorithm, Yeah. you have to put just yourself out. Just be as raw as possible. Be as natural as possible. Be as you as possible. And for Instagram, I've realized that high quality content works. To be a creator who stands out, you have to create organic content. It is very important and you have to keep creating. कब क्या viral हो जाए कुछ नहीं पता है. Yeah. If you're talking about cracking the algorithm, there is no fixed formula to it. You just have to keep creating. और मैंने उसमें प्रोफाइल पे लिखा था लाइक आई एम एन इन्फ्लुएंसर. हूँ नहीं इन्फ्लुएंसर. अच्छा. आई एम मॉडल और हाँ. दिस एंड दैट. ये अपना बनाया एकदम हाई फाई प्रोफाइल. यहाँ पे ये है और स्वाइप चल रहा है. अब उसमें एक लड़के ने हो गया. तो हम कॉफी पीने गए, बोलते देखो मैं फोटोग्राफर हूँ, मेरे लिए काम करो. व्हाट? I am actually using ChatGPT to write prompts to people on dating apps. आई थिंक 2022 में आई वाज इन माय लोवेस्ट. मैं कंटेंट बना रही थी बट आई वाज नॉट एंजॉयिंग दैट. बिल्कुल घर फैला हुआ पड़ा हुआ है, सब कुछ एकदम होता ना जैसे कि मेंटली सिक. हाँ. आई वाज इन दैट फेज. मैंने सब रिकॉर्ड किया और मैंने वो वीडियो डाल दी इंटरनेट पे बिना फिल्टर के बोल के. एंड वो 9 to 10 मिलियंस उस पे चला गया. Wow. 9 लाख से ऊपर उस पे लाइक्स आ गए. आई मीन काफी सेलिब्रिटीज ने उसको लाइक कर दी वीडियो को. तो एक चीज ब्रांड्स के साथ ये भी होती है, जब आप वायरल जा रहे हो ना तब आपके पास ब्रांड्स आते हैं. Everybody want to encash it. तो बोले इतना बजट नहीं. मैं बोला ठीक है आप अपना बजट बता दो. 1500 रुपए देंगे. 1500 हमसे ले जाओ मैंने 1500. बोला 1500 को तो आपका एक सेट भी नहीं है, आप मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो. बोलते हमारा इतना ही बजट है. मैं कहा ठीक है आप मेरे से ले लो, 3000 रुपए मिला के किसी और से करवा लो. तो आई थिंक यू नीड टू अंडरस्टैंड टू कमांड योर वर्थ कि आप जो मांगोगे वही आपको मिलेगा. Absolutely. व्यूज अच्छे आ रहे हैं, हम आपको पीआर भेज देते हैं, आप हमें शाउट आउट दे दीजिएगा. पेड कोलैब मेंशन ही नहीं है. Earning money as a content creator sounds easy unless you have actually done it. From building an aesthetic Instagram profile to pitching to brands to getting rejected to going viral. The creator journey is more than just aesthetics and Instagram likes. And today's episode, we are talking about the business side of content creation. The side that no one tells you about on day one, but defines whether you will make it in the creator economy of 2025. Today, we are joined by two powerhouse of lifestyle creators who have turned passion into profit, and together they have a following of 5 lakh followers. You will hear how they negotiated their first brand deal to the biggest lessons that they have learned, and how are they working with the top brands of India. If you have ever wondered, how can I create a steady source of income through content creation? This is the episode that you cannot afford to miss, because it is all about monetization and brand collaborations. Meet Kanisha. She started as a TV actor, built her own production house, and turned into a full-time content creator in 2018. She has worked with the top brands like L'Oreal, MAC, Amazon, Hotstar, Flipkart, Michael Kors, and many more. With a following of over 3.7 million and 6 awards, she is redefining what it means to be a creator with a business vision. Meet Ishita. She is bold, fearless, and all heart. From 24 million views to being nominated in the Bold and Beyond category at Wishling Creator Awards, Ishita has built a strong hold in fashion and lifestyle. Her work with Nykaa, Lenskart, and Phoenix Market City has helped her become a trusted voice for her audience. And today, she shares everything that she has learned with over 6 years of consistency. Hi Kanisha, hi Ishita. We are so glad to have you for our Creators podcast. In this episode, we are going to talk all about monetization and brand collaboration. So let's start with your journey on what you were doing before you started creating content. Thank you for having me first of all. And means content creation एक ऐसी चीज़ है जो मैंने कभी प्लान नहीं की थी. It's just happened. सो उससे पहले आई वाज लाइक डूइंग माई स्टडीज़, कॉलेज से निकली, फिर जॉब की टेंशन की जॉब करना है ना, पापा बोल रहे MBA कर लो,
मम्मी बोल रही है एयर होस्टेस बन जाओ. इट वाज लाइक सो मच मेस्ड अप. मुझे खुद नहीं, और आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ फैशन डिज़ाइनर और अ कोरियोग्राफर. आई जस्ट लव दिस एंटरटेनमेंट वाली फील्ड कि हाँ भाई मुझे पसंद है डांस करना और फैशन और ये सारी चीज़ें, मुझे वही करना था. उसके लाइक इन लॉकडाउन मेरी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट हुई. सो लाइक आई स्टार्टेड पोस्टिंग, आई टेकिंग इट वेरी सीरियसली कि हाँ भाई ये चल रहा है. आई थिंक मोस्ट ऑफ देम क्रिएटर्स लॉकडाउन के टाइम से ही स्टार्ट किया है उन्होंने. सो मेरा भी वैसे ही स्टार्ट हुआ. बट लॉकडाउन जब ख़त्म लाइक ओपन हुआ था फर्स्ट वेव के बाद में, फिर मैंने जॉब चालू कर दी. मैं बोला नहीं, अच्छा जॉब कर ये ठीक नहीं है. फिर मैंने जॉब की 3 महीने में मैंने वो भी छोड़ दी. मैं को नहीं ये ठीक नहीं है. तो मैंने बोला अब मैं इस पे ही ध्यान देती हूँ. तो मेरी मीन्स वैसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. ये सब लखनऊ में हुआ है. और उससे पहले का क्या है, आपका कॉलेज कहाँ था, लखनऊ. आपकी स्कूलिंग क्या थी? लखनऊ. जब आप करे तब तो मतलब मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम आया ही था और थोड़ा सा कॉमन होना शुरू हो रहा होगा. 2012 में इंस्टाग्राम लॉन्च हो गया था इंडिया में. हाँ, बट वहाँ पे 2012 में ये स्टार्ट नहीं हुआ था. पहले यूट्यूब चल रहा था, बट वो इंटरनेशनली चल रहा था. इंडिया में ये कॉन्सेप्ट कभी लॉन्च ही नहीं हुआ था कि क्रिएटर्स होते हैं या ये सब होता है. इंडिया में मैंने कभी नहीं देखा. और इंस्टेंट चल रहा था तब. हाँ एग्जैक्ट. मैं साइबर कैफे जाती थी अपनी डीपी बदलने फेसबुक पे. पिक्चर्स क्लिक कर लिया पापा के फोन से, जा रही हूँ. हाँ एग्जैक्टली. राइट. इंस्टाग्राम भी वो पिंटरेस्ट की तरह वर्क करता था. इंस्टाग्राम उस टाइम पे कि बाहर के क्रिएटर्स पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं और हम बस इंस्पिरेशन ले रहे कि अच्छा ये होता है वो होता है. तो पापा के फोन में ही डाउनलोडेड था इंस्टाग्राम. बट कभी ओ माय, आप अच्छा मेरे पास फोन था. बट इट वाज लाइक नोकिया का वो जो फोन आता है ना छोटा वाला, 3100. एग्जैक्टली वो वाला फोन दिया था मेरे पेरेंट्स ने, क्योंकि उनको पता था कि मैं कुछ तो कर दूंगी. तो इंस्टाग्राम सुना ही था आपने डैड के थ्रू कि कुछ तो है इंस्टाग्राम. डिड यू आल्सो चेक इट आउट? अच्छा, आज भी मेरे इंस्टाग्राम आप ही ने डाउनलोड किया उनके फोन पे? मैं बस चेकआउट, मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी होती है, नई नई चीजें आती हैं देखने के लिए. तो मैंने देखा इंस्टाग्राम बहुत चल रहा है तो मैंने डाउनलोड कर लिया. फिर ऐसे करके 2015 या 14 में डव मैश आया था उस टाइम पे. मैं बोला ये मेरे काम की चीज़ है. इस पे गाने बज रहे हैं, इस पे मैं करूंगी डांस, इस पे मैं करूंगी लिपसिंग, इस पे मैं करूंगी सारी. डव मैश मैंने स्टार्ट किया, फिर वो छोड़ दिया, फोन टूट गया, गुस्से में फेंक दिया. बट ये डैड के फोन पे? हाँ. अच्छा. आई थिंक इसी से कनिशा पे आते हैं. ऐसे थोड़ा सा तो वी वांट टू डेल्व अ बिट डीपर कि ऑर्कुट से शुरू हुई क्या आपकी जर्नी? नहीं, मेरी जर्नी हुई थी जब मैं पैदा हुई थी. तब से मुझे बचपन से हीरोइन बनना था. तो आई वाज 10 years old जब मेरी मॉम को मैंने बोला मुझे ऑडिशंस करने हैं और मुझे जाना है. तो लाजपत नगर, आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो लाजपत नगर में ऑडिशंस होते थे. वहाँ पे 6,000 रुपए उस वक्त बहुत बड़ी बात है. तो मम्मी ने 6,000 रुपए दिए थे ऑडिशन करवाने के. आई डोंट नो व्हाट स्कैम वाज इट, बट बिकॉज बच्चे को शौक है तो मम्मी ले गई. तो 10 साल की उम्र में मैंने ऑडिशन दिया एंड आई थिंक आई स्टिल हैव दैट टेप. मुझे तो बनना था हीरोइन, तो वो टेप मैंने आज तक संभाल के रखी है. एंड आई वॉज 10 और 11 years old जब मुझे मेरा पहला शो मिला था. इट्स कॉल्ड म्यूजिक धमाका. तो उसमें एक अंकल होते थे जिनके साथ बच्चे जोक्स क्रैक करते थे, बीच बीच में म्यूजिक चैनल्स आते थे. अच्छा. सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ माई सेल्फ. दूरदर्शन पे आता था, DD1 पे. आई वेंट एंड टोल्ड एवरीवन मैं टीवी पे आने वाली हूँ, मुझे देखना, मैं टीवी पे आने वाली. एंड थोड़े टाइम बाद पता चला कि वो जो प्रोडक्शन हाउस था वो स्कैमर्स थे. ऑब्वियसली बच्चों से पैसे ले रहे हैं वो कराने के. ये सब दिल्ली में हो रहा था? ये सब दिल्ली में हो रहा था, लाजपत नगर में हो रहा था. एंड देन माई मॉम वाज लाइक अब तुम स्टडीज पे ध्यान दो. फिर 18 की एज में व्हेन एवरीथिंग, पढ़ाई कर ली, सब कुछ हो गया एंड आई स्टार्टेड गोइंग टू कॉलेज, तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार मुझे तो एक्टिंग ही करनी थी. ठीक है, थोड़ा ये जो कैमोफ्लेज कर लिया जिंदगी में कि पढ़ाई करूंगी, वो हो गया अभी. तो आई स्टार्टेड गोइंग फॉर ऑडिशंस एंड एवरीथिंग एंड आई क्रैक्ड माई फर्स्ट फिल्म. मंडी हाउस में ऑडिशंस हो रहे थे. सो आई डिड माई फर्स्ट फिल्म secondmarriage.com. तो 18 years की थी. तो तब जब वो फिल्म रिलीज हुई ना, PVR सिटी मॉल में जो थिएटर है PVR में, जब रिलीज हुआ, वाज लाइक 70 mm में देखने के बाद अब मुझे बॉम्बे जाना है. अब कुछ भी हो जाए, लड़ाई करूँ, कुछ भी करूँ, मुझे बॉम्बे जाना है. सो देन आई केम टू बॉम्बे, आई स्टार्टेड एक्टिंग. बट देन अराउंड 2016 और 17 आई रियलाइज कि यार ये अच्छा है, बट मुझे ना मतलब आई एम क्रिएटिव, आई वांट टू डू समथिंग बिहाइंड द कैमरा आल्सो. एंड दैट्स व्हेन वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड मी कि ब्लॉगर बोलते थे इन्फ्लुएंसर्स को. हाँ, इन्फ्लुएंसर्स को जब मैंने स्टार्ट किया. कंटेंट ऑन वेबसाइट. एग्जैक्टली. नो बट दे यूज्ड टू कॉल ब्लॉगर्स ओनली. तब टर्म इतना फेमस नहीं था. हाँ, कंटेंट क्रिएशन या इन्फ्लुएंसर इतना फेमस नहीं था. बोलते थे नीड ब्लॉगर्स. तो हम लोगों को पता नहीं था कि ब्लॉगर क्या होता था. मेरे फ्रेंड ने बोला कि
तुम ना ब्लॉगर बन जाओ। मैंने कहा ये क्या होता है? कहते कि सोशल मीडिया पे ना कंटेंट बनाते हैं, अगर तुम्हारे कुछ फॉलोअर्स है ना तो तुम पैसा कमाओगे। एंड आई वॉज वेरी स्केप्टिकल ऑल्सो एंड वेरी इंट्रीग्ड ऑल्सो कि यार ये कैसे बनाते हैं, पैसे कैसे मिलते हैं आपको। सो एट दैट टाइम वन ऑफ माई सीरीज वॉज रिलीजिंग एंड मेरे कुछ 10-12,000 फॉलोअर्स हो गए थे। तो आई स्टार्टेड डीएमिंग ब्रांड्स कि आई वॉन्ट टू क्रिएट कॉन्टेंट फॉर यू, कैन यू सेंड मी सम प्रोडक्ट्स। So that's how I started my content creation journey in 2018. तो मजा भी आने लग गया अब। ऑर्कुट वगैरह तो होता था तब। I was very shy actually. अच्छा, बट कैमरा शाय या मतलब कैमरा के लिए you were pretty comfortable in front of the camera, but other than that you were shy. Very shy. I was very shy because content का concept थोड़ा misnomer है ये ऐसा। मेरे को लगता है कि ऐसे a lot of people ऐसे generally think कि people who come in front of the camera they are not shy at all, ऐसा perceive करते हैं लोग। Initially I was, because honestly जब TikTok भी था I was till then very shy to create content on social media, क्योंकि हम क्या ना उस वक्त इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर बन गए थे कि चलो ब्रांड सामान भेजेंगे, कंटेंट बना के डाल दिया कि ये देखो नई क्रीम खरीद लो। बट इट वॉजंट लाइक दैट बाय द टाइम दिस टिकटॉक एंड रील स्टार्टेड कमिंग आउट। बाय देन पीपल वर कंटेंट क्रिएटर्स। देन आई स्टार्टेड गेटिंग लेस लाइक इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया शाय। वरना हम तो एक्टर है ना, हमें तो बस कैमरा ऑन होगा तभी एक्ट करना, अदरवाइज तो यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। And by the time when I started content, 2018, my feed was so bad. So then I hired a company agency and I told them कि कैसे मिलेगा ब्रांड कंटेंट। कह रहे ऐसे तो नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो ये सब आर्काइव करो। लाइक ओ हम तो फेसबुक ऑर्कुट वगैरह पे भी यही डालते थे। They're like नहीं, if you want to be a content creator, this is a very different journey from an actor. So then I started understanding that bifurcation कि कंटेंट क्रिएशन एंड एक्टिंग इज वे टू डिफरेंट। ऐसा लगता था कि इट्स सेम बट इट वाजंट। बट आकृति का प्रोफाइल देखा कि मेरी एजेंसी ने बोला था ये क्रिएटर आप देखो, आपको ऐसा प्रोफाइल बनाना है। आई वाज लाइक, एंड देन आई सॉ माय सेल्फीज विद शाहरुख खान एंड सलमान खान एंड ऑल द एक्टर्स, आयुष्मान खुराना। मैंने कहा ये हटा दूं, ये कैसे हटा दूं यार, मतलब आई हैव अ सेल्फी विद नहीं डजंट मैटर। इफ यू वांट टू बी अ क्रिएटर, नोबडी केयर्स अबाउट यू हैव अ पिक्चर विद सलमान खान और हु, यू हैव टू सी कि हाउ एस्थेटिक योर प्रोफाइल इज। सो कोविड रियली हेल्प्ड ग्रो। Like I still remember कि for all content creators, I believe. For all content creators, because क्या everybody was sitting at home, and in fact when I started it in 2018, बहुत कम content creators थे, तो हम लोगों को ना थोड़ा सा ज़्यादा leverage मिलता था कि अरे people were also quoting a lot of money कि इतना लेंगे उतना लेंगे ऐसा करेंगे। Then when 2020 came and everybody started doing content, फ़ायदा हुआ क्योंकि इतने ब्रांड डील्स भी आते थे, कंटेंट भी बनता था। बट उस टाइम पे इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स पैदा हो गए ना कि मतलब द सैचुरेशन केम एंड वी वर लाइक अरे यार अब क्या करना है, ये करना है कि नहीं आता है। ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और सब लोग वही कर रहे हैं, हम कैसे स्टैंड आउट करें इस पूरे क्राउड में, इस पूरी इंडस्ट्री में। आई थिंक अब थोड़ा सा रिसेंट है ये। बैक देन व्हेन यू स्टार्टेड योर जर्नी और व्हेन यू आल्सो स्टार्टेड 2020 में, तो थोड़ा सा कम कंपटीशन था, देयर वर लेस पीपल। अब मैं भी देखता हूँ अपनी फीड में, इट्स बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर द फीड टू डिस्कवर न्यू पीपल नाउ, बिकॉज नाउ देयर आर इनफ कंटेंट क्रिएटर्स हु आर क्रिएटिंग इनफ कंटेंट कि न्यू कंटेंट क्रिएटर्स पुश ऑन अ फील्ड में मुश्किल होता जा रहा है। सो पीपल हु आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इन दिस फील्ड, उनकी जर्नी थोड़ा सा प्रोग्रेसिवली बढ़ती जा रही है। बट टू स्टार्ट ऑफ एज अ न्यू पर्सन, जो आप लोगों के एक्सपीरियंसेस थे, वो दैट्स नाउ अ बिट डिफरेंट फॉर एनी पर्सन who wants to start today. But again I would say the growth is there across. देखो सब लोग सेम चीज ही बोल रहे हैं, like she is also going to say एक प्रोडक्ट है वो भी बेचेगी मैं भी बेचूंगी, एग्जाम्पल। बट द वे how you sell it और how you tell the story is what matters now. अभी भी बहुत सारे नए कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं, बट देयर आर फ्यू ओनली हु आर स्टैंडिंग आउट, लाइक धरना एंड ऑल। हाउ आर दे स्टैंडिंग आउट? बिकॉज दे नो हाउ टू टेल अ स्टोरी। सो अभिनव all these creators are coming because they know how to tell a story. So I think that is what bifurcates everybody from somebody who has their own language or own way of saying things. So Ishita and Kanisha, both of you look so confident in front of the camera, and Kanisha also attended the Flipkart event on a wheelchair. So it takes a lot of confidence to be there in such a huge crowd of creators and still make a mark. So how do you guys deal with the times when you are not feeling that confident? So I think that there is a saturation for everybody. Like for example, in February I did a series which went viral. Like it got so many views. I did like a IP, like mini series, micro series. And after that, for good 2-3 months, I did not want to do anything
because my mind was like done, अभी क्या करना है लाइफ में, कुछ करना है नहीं करना है, कंटेंट बनाना है नहीं बनाना है. So I did this series called Rebound Shadi. I'm trying to create more of micro series now because as a storyteller and as a writer, I want to make more of such content. So I integrated a brand in it, so it was like more of a brand series, but it had a storyline, and everyone's asking me now when is the season 2 coming. So it got, I think one of the episodes got almost like 2 million views. So it actually got better views than what I usually get, and it was really good. The engagement was amazing, and people want that kind of content now. So after that, actually my mind just got numb ki, okay, this is good. So do I want to keep doing this, or do I want to create something different? So in time like that, now I take pause. I go in my cocoon. I do not post anything. Of course, people start asking ki kya hua, why are you not posting content? But then sometimes it's very important. And then when I went to Flipkart, I was actually on bed rest for a while. I had fractured my foot. So for almost a month I was on bed rest, and that's when it clicked me. जब Flipkart हुआ, I actually look forward to such events where and I was skeptical कि यार wheelchair पे जाना चाहिए, लोग मजाक ना उड़ाएं, पता नहीं क्या सोचेंगे, कुछ लोग ये भी सोचेंगे desperate है. But then I was like, you know what, this is my work. I can't just keep sitting at home thinking about what people will think. I rather just go there and probably and maybe this will make me stand out. Yeah. She noticed it. We didn't even know each other before this, but she noticed it. कि, oh, were you at Flipkart? Because people noticed. And I still remember I was recording intro for a brand. I was doing some brand content there. And ऐसे normally नहीं होता है. But because I was on wheelchair and I gave like intro very confidently, people were clapping. Okay. So I was like, okay, this is good. Why was I so skeptical about it? So I think whenever this happens, I just take a pause. I think about it. I get new ideas, and I just go in with confidence. कि boss, सोचने दो जो सोच रहे हैं, क्या कर सकते हैं. Because initially when I was starting social media, I used to think a lot कि now my niche is comedy. तो initially I used to think कि यार मैं comedy करूँ कि नहीं, पता नहीं लोग मजाक ना उड़ाएं मेरा. So I was doing everything. I was doing what everybody was doing. Like lifestyle and fashion, lifestyle and beauty कि everybody सब एक जैसा content बना रहे हैं. I was like नहीं. If I want to grow, I have to stop this and start doing what I'm good at. Maybe I'm not good at it, यार, पता चल जाएगा 2-4 videos में. But thankfully, it turned out well for me. So I was like, you know what? The biggest thing is you have to first stop self-doubting yourself. So I take a pause, I stop the self-doubting, then I come back with a bang. So that's what I do. Really, Kanisha, I've seen your profile and the way you are integrating comedy into your content and going viral with 6 million views. It's like very inspiring for the creators community also. So for all the audiences who are listening, Kanisha's journey is really inspiring. So do follow both the girls on their social media handles. Yes. So let's come to your journey, Ishita. That what do you do on the days when you are not feeling that confident? So ये मेरे साथ बहुत often होता है. Because as a fat person, अगर आप सोशल मीडिया पे जा रहे हो, तो आपसे ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है, नॉट इवन सिर्फ ऑडियंस नहीं, लाइक आपसे सभी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक बॉडी पॉजिटिविटी कंटेंट बनाओ. इवन दो आई एम नॉट फीलिंग दैट थिंग, ओके. सी मेरे लिए बॉडी पॉजिटिविटी ये नहीं है कि लाइक आई एम अ फैट पर्सन एंड आई एम वेयरिंग लाइक दिस लाइक सर्टन काइंड ऑफ क्लोथ्स. मेरे लिए बॉडी पॉजिटिविटी ये है कि भाई मैं इस बॉडी में भी स्टैंड आउट कर रही हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ, मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं लोगों से बात कर सकती हूँ, और बाहर जाके अकेले बैठ के आप रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हो. क्योंकि मुझे बहुत जज किया जाता है इस चीज़ पे कि लाइक क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ और मैं बाहर जाती हूँ जब भी खाना खाने के लिए, मैं ऑर्डर करती हूँ एंड मैं खाती हूँ, मुझे घूरते हैं वो लोग कि भाई अकेले इतना खा रही है. हाँ, मुझे पसंद है, एग्जैक्टली मुझे पसंद है और मैं खाऊंगी. तो ये मुझे कहीं ना कहीं ये काफ़ी अफेक्ट भी करती हैं चीज़ें. और मुझसे ये जो एक्सपेक्टेशंस है ना कि बॉडी पॉजिटिविटी चीज़ें आप करो, क्योंकि ब्रांड्स भी कभी कभी ऐसे होते हैं कि आपकी बॉडी पे यू आर अ फैट पर्सन एंड यू हैव स्ट्रेच मार्क्स, तो हम चाहते हैं कि आप स्ट्रेच मार्क्स को हाईलाइट करो, है ना. आपकी थाइज, यू हैव अ लाइक ह्यूज थाइज, तो आप उस पार्ट को आप हाईलाइट करो कि आप इन सब चीज़ों से गो थ्रू करते हो. इफ यू हैव अ बिग थाइज और ऐसे करके, आई एम लाइक कि क्यों करना है,
मीन्स मैं क्यों मतलब करूँ? you're not enjoying it and then people or other brands have expectation कि आपको ऐसा ही content बनाना चाहिए. एग्जैक्टली क्यों? मीन्स मुझे नॉर्मल प्रोडक्ट्स क्यों नहीं मिल सकते? लाइक हाँ, मुझे दे दो वीट, दे दो हेयर रिमूवल क्रीम, मैं भी करूँगी. अब उसमें मैं कैसे बताऊँ कि भाई मुझे स्ट्रेच मार्क्स हैं और मैं ये फील कर रही हूँ? तो इन सब चीज़ों की वजह से भी ना मैं बहुत डीमोटिवेट हो जाती हूँ कि मुझे लगता है कि यार जो मैं करना चाहती हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू बी माई सेल्फ ऑन इंटरनेट. Yeah. मैं नहीं बताना चाहती हूँ कि ये प्रॉब्लम है. ये कितना बुरा लगता है अगर मैं बोलूँ यार कि मुझे स्ट्रेच मार्क्स, बल्कि मैं फील भी नहीं कर रही हूँ, बट जस्ट द सेक ऑफ ब्रांड मुझे ये करना पड़ रहा है. Yeah. तो ये सारी चीज़ें बहुत डिमोटिवेटिंग होती है. फिर जब मैं इस ये वाले जोन में चली जाती हूँ कि मुझे नहीं करना है, मैं अपना कंबल ओढ़ती हूँ और सो जाती हूँ. बस सो जाओ. मैं पूरा शट डाउन कर देती हूँ अपना सिस्टम कि मुझे सुनना ही नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है, कौन क्या बोल रहा है. मैं अपना बना के खा रही हूँ, मैं मूवी देखने जा रही हूँ, कुछ नहीं, इंटरनेट से गायब पूरा. फिर उस टाइम पे ना ऐसे इवेंट्स बहुत हेल्प करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, नायका लैंड हो गया. Yeah. फिर जब आप अपने जैसे लोगों के बीच में जाते हो ना, Yeah. तब वो एक पुश मिलता है कि यार नहीं, दिस इज माई प्लेस एक्चुअली, दिस इज वॉट आई डू. एंड मुझे मीन्स उतना ज़्यादा एक्नॉलेज किया गया कि मुझे बुलाया गया है इसमें. Yeah. ठीक है, तो मैं क्यों नहीं कर रही हूँ? जस्ट बिकॉज कुछ लोगों की वजह से या ऐसी चीज़ों की वजह से मैं फेस कर रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं सोती ही रहूँगी. फिर ऐसी चीज़ों, जब इवेंट्स होते हैं मैं वापस आती हूँ, मैं एकदम पंप रहती हूँ, यार ये बनाना है, वो बनाना है, अब ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी. फिर बनाते 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 फिर एकदम से नीचे हो जाती हूँ. So do you have friends in the creators group? No. I do. I have actually, I'm very blessed that I have a huge circle of creators as friends. But being from Bombay, it's a bit easier, I think. Pune में ऐसा है क्या ecosystem of creators? No. Actually, I think it's all about आपको अपने जैसे लोग, आपके जैसे कहाँ stupid मिलते लोग हैं? ढूंढने पड़ते हैं. Like हाँ, how you true. are. Like आप जैसे थोड़े से क्रेजी टाइप के लोग आपको ढूंढने पड़ते हैं. सो व्हाट आई ट्राई टू डू इज कि कुछ ऐसे हैं, सादा नहीं है, तो हम लोग ऐसे कोई, हमारे पास कुछ ऐसे भी कोलैब्स आते हैं ना, जैसे ट्रैवल कोलैब्स एंड ऑल, हम सबकी प्रोफाइल भेज देते हैं, फिर हम एक साथ जाते हैं सारे. सो इट्स एक्चुअली फन. सो देन दे आल्सो डू इट. बट आई नो लॉट ऑफ क्रिएटर्स, बट वो फ्रेंड्स जो आप बोल रहे हैं ना, वो गिने चुने हैं. एंड दे आर लाइक सुपर फ्रेंड्स. हम लोग सब साथ में भी गए थे एट फ्लिपकार्ट. वी वर ऑल टुगेदर, 10-12 लोग. Okay. And that's how I could actually survive Flipkart, because they were all taking care of me. Yeah. Who are your Koi- closest friends, Kanisha, in the creator industry? So I'm not sure if they are not that famous, but Lakshan Arula, he's also a very big creator. Then I have Harsh Nagar, he's also a great creator. I have this another creator friend, Akansha Jindal. She's also doing great for herself. So I have a lot of good creator friends, but these are people who are actually close, who would want to go an extra mile and do things for you. Okay. Got it. So one thing I would like to highlight over here, last year at the same time we were doing a creators meetup in Pune, and it was raining really heavily. The dam had broken off, and there were 37 creators who showed up on that day. एंड जैसे ही वो लोग एंटर किए ना, एवरीबडी वॉज फीलिंग अ लिटिल इंट्रोवर्टेड, थोड़ा शाय थे. एंड जैसे ही वो इवेंट का फ्लो स्टार्ट हुआ, एवरीबडी बिकेम फ्रेंड्स विद ईच अदर. एंड हमारा इवेंट 4 to 6 का था. 11 बजे तक कोई भी क्रिएटर जाने के लिए रेडी ही नहीं So था. sweet, yeah. एंड दे ऑल बिकेम फ्रेंड्स. एंड अभी भी वो लोग साथ में हैं, सारी जगहों पे साथ में जाते हैं. दे डू मैसेज मी कि हम लोग पुणे मीटअप से लेके आज तक 1 year हो गया, वी आर ऑल टुगेदर एंड वी आर अटेंडिंग ऑल द ट्रैवल कोलैबोरेशंस टुगेदर. So Ishita, I'm going to introduce you to them, That is and they are going to support you so much. They are going to watch the podcast, and you will be with them very soon. Super. I actually went to Isha Foundation in February. Yeah. And I met, like how you're saying this, for the first time in my life, I actually felt so nice among creators. Usually हम जाते हैं events पे, but आप मिलते हो, hi hello करके आप निकल जाओ apart from your own group. बट वहाँ पे ना ऐसा लग रहा था, बाय द एंड ऑफ इट वाज अ 3 days retreat, you know, सदगुरु's आश्रम. एट बाय द एंड ऑफ द रिट्रीट इट फेल लाइक हमारी स्कूल की या कॉलेज की फेयरवेल है. Okay. Everybody was crying. And recently, out like from that group only, I went on a trip to Thailand with 4 creators. It was Goals. quite That fun. is We friendship actually goals. created content and we collaborated with hotels there. So it was quite fun. So for the first time, I felt like कि हाँ ये अपनी भी एक कम्युनिटी बन सकती जो है. सपोर्ट एक्चुअली कर रहे हैं. मैं Yes. बहुत ये चीज़ बहुत मिस करती हूँ एक्चुअली, बिकॉज मेरा जो कंटेंट बनता है वो सिर्फ मेरे घर से बनता है, एंड आई डोंट हैव लाइक क्रिएटर फ्रेंड्स. तो जब मैं ऐसे लाइक आप अगर कंटेंट बना रहे हो तो आप कंज्यूम भी कर रहे हो, तो जब मेरा वो कंज्यूमिंग वाला फेस चल रहा होता है
I was like यार ये कैसे घूम रहे हैं ये, कैसे दोस्त बन गए ये, मेरे क्यों नहीं बन रहे हैं, मेरे तो एक भी फ्रेंड ऐसी नहीं जिसके साथ मैं घूमने जाऊं, और क्यों कंटेंट कैसे बना रहे हैं इनको, लाइक एक होता ना, अगर मैं व्लॉग बना रही हूँ, मैं अपना फोन चालू करके ना पहले ऐसे चलती हूँ, इधर उधर देखे कोई है तो नहीं, फिर धीरे से ऐसे उठाती हूँ, हाय गाइस आज मैं यहाँ देखा, इधर तुरंत फोन ऐसे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, मतलब मुझे इतना अजीब सा हो जाता है। और मैं जब देखती हूँ कि दूसरे क्रिएटर्स जा रहे हैं, वो लाइक इतना कंटेंट बना रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, मैं इतना मिस करती हूँ कि यार मेरी लाइफ में क्यों नहीं हो रहा है ये, मैं सिर्फ एक घर में 4 दीवारी वाले एक बॉक्स में हाय गाइस यही कर रही हूँ, मैं को क्यों हो रहा है Don't worry, Shita. Now you are in the right place, and I'm going to introduce you to our creators community. So Super. almost every alternate month we are hosting creator meetups, and we are inviting all the top creators of Mumbai. So far we have hosted 500 plus creators. Wow. In Yeah. 9 cities of India, and we invite them, we stay connected with them on a WhatsApp group. Kanisha is already a part Yes, of the I'm Mumbai part of- chapter. Yes. मैं क्यों नहीं So, हूँ? Making Mumbai chapter. You'll be soon. you'll You be will at be the part Pune of Pune chapter. chapter. But I think Ishita and Kanisha, as far as I understand, community has given you a sense to continue this journey, even though sometimes Yeah. it's a Yeah. bit, ऐसे थोड़ा, it's not the best. It might just be a bit depressing also sometimes, क्योंकि थोड़ा सा lonely work है. You have to be in front of the camera, you know, throughout the day and Yeah. time, and you know, create मेरे साथ all भी this बहुत content. होता है, because I stay alone in Pune, and अगर देखा जाए तो एज अ लाइक क्रिएटर फ्रेंड्स क्या नॉर्मल भी अगर मैं बोलूँ लाइक गो टू एक है, बट उसको लाइक आप हर समय किसी के ऊपर नहीं कर सकते Of ना course. कि नहीं भाई चल मेरे को जाना है, Yeah. उसको भी काम है, उसकी भी Yeah, लाइफ है। yeah. सो मेरे साथ ये बहुत होता है। अगर मैं बोलूँ ना तो मेरे जो लाइक फ्रेंड है तो वो मेरी ऑडियंस है। Yeah. How sweet. Okay. Very nice. अगर मैं 2-3 दिन के लिए गायब हो गई इंस्टाग्राम से, कोई ना कोई मैसेज कर दे, व्हाई आर यू नॉट पोस्टिंग, Okay. वेयर आर यू ओके, Yeah. क्योंकि मैं कुछ भी फील कर रही हूँ, चाहे वो मैं क्रैंकी हूँ, मैं एकदम बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, मैं रो रही हूँ, मैं हंस रही हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा हो गया, सबसे पहले मेरी स्टोरी जाती है, गाइस आज ये हो रहा है, ये हो गया मेरे साथ में, मैं रैंट कर रही हूँ स्टोरीज पे, सब सुन रहे हैं, सब मैसेज कर रहे हैं मुझे, हाँ ये हमारे साथ भी होता है ऐसा वैसा, और फिर एकदम से मैं गायब हो जाती हूँ, क्योंकि भाई एक सैचुरेशन आ जाता है कि नहीं मन कर रहा है। इंस्टाग्राम मैं कितनी बार होता है मैं अनइंस्टॉल कर देती हूँ, मुझे नहीं चाहिए। उस टाइम पे मैसेजेस, कहाँ गई तुम, ठीक हो कि नहीं, व्हाई आर यू नॉट पोस्टिंग, आर यू ओके, टेक ब्रेक, ओके टेक क्या बोलते हैं उसको, गेट वेल सून, अगर Get well बीमार हो soon. तो ऐसे करके मुझे मैसेजेस आते हैं, मैं बोलती हूँ यार ठीक है, आई एम लोनली इन माई पर्सनल लाइफ, बट या आई हैव क्रिएटेड समथिंग फॉर A माई family, सेल्फ, yeah. कि हाँ वहाँ पे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं कि इशिता क्यों नहीं आ Yeah, रही इंस्टाग्राम पे, So so I that think is a good thing. family और real friends से ज़्यादा I think online friends जो है Yeah. those are your real supporters. Yes. Absolutely. तो आपके लिए भी कनिशा द सेम थिंग कि योर यू फील योर ऑडियंस इज योर फैमिली और योर बेस्ट फ्रेंड्स ऑल अराउंड? Absolutely, I am what I am because of them. But मुझे लगता है कि मेरे लिए ना balance of offline and online is important. Like I have built a community offline as well. Like for example, अगर मैं कहीं जाती भी तो people recognize me, so offline as well. And I try to do meetups also sometimes, you know, with my online family. Wow. And I try to, you know, How catch up. these are online meetups? Yeah, कि Okay, चलो very मैं दिल्ली nice. में हूँ, do you guys want to catch up? And then there are followers and all who say कि, and I try to communicate, there are followers who actually message me and I reply to each one of them. Wow. So my online family is like, अच्छा कोई पूछता भी है ना कि क्या हुआ मैम, आप बहुत दिन से ऑनलाइन नहीं आए, सब ठीक है ये वो. And my creator community is also very important part of it. Like for example, अभी I was on bed rest. Yeah. So I have friends who would just come home and say चलो कंटेंट बनाना है. तो मैंने कितना कंटेंट Okay. तो ऐसे बनाया है कि अच्छा चलो Wow. ठीक है अब कुछ बनाते हैं. So I have 3-4 people I create content with. They're like, come, let's create content. तुम क्या बैठी हुई हो bed rest पे? Why are you not? And then my online community was also getting very worried about it कि आप content क्यों नहीं बना रहे हो? क्या है? Then I was like, अरे पैर में लग गई है. Then I had to actually put up a story saying कि you know because I have an injury, I'm mentally also very disturbed and everything. So then I started getting messages. Take care, ma'am. It's okay. We are waiting for your content. आप कब आओगे वापस? आप. So it was very, you know, it was very sweet of them also. So that's why I try to
keep doing giveaways for them. Okay. Or I ask people what kind of content do you want to watch, or I try to keep meetups also once in a while. And so this really helps keeping the intact, like in touch with them. तो वो लोग, क्योंकि उनको लगता है कि वी आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आप उनसे पूछ रहे हो कि आप किस टाइप का कंटेंट बनाओ, या फिर आप क्या देखना चाहोगे, या फिर आप मिलना चाहोगे कि नहीं, या गिव अवे वगैरह करो ना, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं. कभी कभी तो पीपल एक्चुअली मैसेज, कोई और गिव अवे जीत जाता है तो लाइक मैम मैंने इतनी मेहनत की थी, आपने मुझे दिया नहीं. तो समटाइम्स आई टेल देम कोई बात नहीं, आप अपना एड्रेस भेज दो, मैं भेज दूंगी आपको, ब्रांड की तरफ से नहीं हुआ तो. नहीं मैम इट्स ओके, आप नया गिव अवे करो. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर पोस्टिंग ऑनलाइन एट, क्या पीछे एस्थेटिक्स कैसे क्या है क्या नहीं, वरना पीपल नोटिस एवरीथिंग और उनको मजा आता है देखने में. ये चीज़ अच्छी लगती है जब वो बोलते हैं ना कि हम इतने क्रिएटर्स को मैसेज करते हैं और हमें कोई रिप्लाई नहीं करता, बट आप करते हो, आप कितना मतलब कितने स्वीट हो, आप अपना टाइम निकाल. मेरे पास टाइम ही टाइम है. करो मतलब मीन्स मुझे तो याद हो गए कुछ अपने फॉलोअर्स के नेम. सेम मीटअप, इन्होंने मीटअप का किया था, मैंने मुझसे बोला कि आप मीटअप करो, मैंने स्टोरी बढ़ाया, देखो मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे सोशल एंजाइटी होती है, और सबसे बड़ा फियर ये कि व्हाट इफ कोई नहीं आया, मैं मीटअप नहीं कर पाऊंगी, मैं अकेले में मिल लूंगी. तो जिसको मिलना है मुझे डीएम करो. इतने डीएम्स आ गए, अब मैं क्या करूं? अब क्रिएटर मीटअप, इतने डीएम आ गए तो करो. फॉलोअर्स. अब फिर मैंने लाइक एक बना दिया कॉन्सेप्ट कि वीकेंड पे मैं अपने एक फॉलोअर से मिलूंगी. तो मैंने ऐसे करके लाइक मिलना स्टार्ट किया, एक से मैंने मिलना स्टार्ट कर दिया कि मैं एक से मिल रही हूँ एक वीकेंड, फिर नेक्स्ट वीकेंड. तो मैंने सोचा कि ऐसे मेरे फ्रेंड्स भी बन जाएंगे, क्योंकि मैं पुणे में इतना है नहीं कुछ, तो मैंने वो एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया. सो आई थिंक ऐसा जो पसंद आ रहा है वो एक तो कम्युनिटी जो है दैट फोर्सेस यू टू कंटिन्यू इन दिस फील्ड, एंड द सेकंड थिंग इज द लव ऑफ योर ऑडियंस. वो बहुत ही आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू इन ऑर्डर टू कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग से ग्रेट कंटेंट ईच एंड एवरी डे. कि मन नहीं कर रहा है आज और ऐसे चोट लगी हुई है और प्रॉब्लम्स है लाइफ में, बट देन व्हेन यू हैव टू गेट अप फ्रॉम दैट बेड एंड क्रिएट कंटेंट, आई थिंक ये 2-3 थिंग्स है. So let's come to 2025. कि what do you think is working as per the algorithms right now? Okay, I think algorithm को तो आज तक कोई समझ नहीं पाया है. There are times when I have posted the most randomest video, like eating golgappas, and they have gone viral. अच्छा. But then there are videos which I have put mehnat in. Yeah. Like Halloween, I remember I made this very nice video, and everybody was like, "Wow!" All my followers were like, "This is amazing. This is by far one of your best video. इतना मेहनत किया है वो." But I was like, यार इस पे तो व्यूज ही नहीं आए हैं ज़्यादा यार, 100-200 के व्यूज आ रहे हैं और उस पे क्या मिलियंस में चले गए क्या? What is the public wanting to see? So I've realized one thing on YouTube, if we talk about as a platform, rawness works. If you want to crack the algorithm, you have to put just yourself out. Just be as raw as possible, be as natural as possible, be as you as possible. And for Instagram, I've realized that high quality content works. Okay. So if you have to crack visually. Okay. So if you have, if you are trying to add storytelling, really works. I have myself as a creator realized that when I'm doing something related to storytelling, like the series, Rewound Shadi, I've done 2 series by far on social media, and I'm planning to do more now. Okay. So when you bring something which is story-wise storytelling, then I really feel that is something which is working now. Micro series is working now, or you must have seen those videos. Watch part 2, part 3. I think those kind of content, or if you're doing small like content which is also like shorter version, then also if you're trying to tell a story or if you're trying to give a information out, public is going to watch. I am sure. Matlab, if you are going to, for example, everybody, if I tell you have to sell this product, how you sell it is what matters. If you're going to tell a story that how this fits in your life, that is something which will work. If you're just going to say, hey, ये ले लो, nobody is going to buy. मैं क्यों ले लूँ? मेरा क्या purpose है इस जिंदगी का? मैं क्या करूँगा इसको घर में? But if you're going to put it and show कि हाँ इससे ये कर सकते हो आप, ये इसकी चीज़ें हैं. I am telling you, people will start buying. This has happened from my own videos. People have started messaging me, ये कितने का है, क्या है? And this is only like a branded content I'm talking about. In normal life also, if you're going to give information, if you're going to entertain people, then only your content will work. Or if you're going like information in ways of
if you're a content beauty creator, if you're giving some value to your audience, then only they'll follow you. Otherwise, I have realized that there is, no matter how many videos you post, you're not going to crack So algorithm. subject matter expert होना पड़ेगा आपको to in order to create some information around the products that you are using या फिर in the category that you are creating the video. So उसमें आपको बाकी लोगों से बेटर होना पड़ेगा, या फिर whatever you are doing to yourself and even if it's working average तो मैं उसको शूट करके डाल सकता हूँ. What do you think? बेटर तो आई डोंट थिंक सो. आई थिंक ऐसा कोई भी नहीं होता कि कोई किसी से बेटर है. इट्स जस्ट हाउ यू टेल योर स्टोरी. इट्स ऑल अबाउट पीपल वॉन्ट टू लिसन वॉट यू हैव टू से. So it's not about who's better and who's not. What is your take on it is what matters. तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये माइक है, अगर इस माइक के बारे में 10 और लोग चीज़ें बता रहे हैं, बट हाउ आई टेल द स्टोरी ऑफ दिस माइक इज़ वॉट मैटर्स, एंड आई थिंक दैट इज़ वॉट पीपल आर गोइंग टू वॉच. इफ दे लाइक मी फॉर हाउ आई टेल दैट स्टोरी और हाउ आई sell that product. And eventually, if I have to say, quote unquote, content creators or influencers are high-end, salesperson. I have said that so many times to people that I am a salesperson. I'm just a high-end, bougie, luxury salesperson. So who is your favorite creator who is doing the storytelling thing right current? Raj Shamani. Raj. He is so good with his storytelling, and Sharan. They know how, like Sharan, I remember attending, I'm an influencer and I got influenced. I attended his 1% club The workshop finance right now, event, finance yeah. workshop. And he tells the story so So well that you want to invest into it. You Yeah. want to go for it. I think getting the right people on board is one of his, like the best strategy Forte, possible that's for. his forte, It's working for him. Yeah, Absolutely. He's getting the right people Yeah. on his podcast. I think whatever you're doing, whatever niche you're doing, you just have to be good at it. You just have to know what you're doing and what you're saying. I have seen a lot of creators who are influencers per se. They are just selling products. Yeah. आप खोलो उनका Instagram page और आपको लगता है आप दुकान में आ गए. Yeah. So I feel that to be a creator who stands out, you have to create organic content. It is very important, and you have to keep creating. कब क्या viral हो जाए कुछ नहीं पता है. Yeah. If you're talking about cracking the algorithm, there is no fixed formula to it. You just have to keep creating, and relatability. Because as we spoke about the community, the people who are sitting behind, like on the other side of the camera, they just want to they want to feel seen and relatable. Storytelling, relatability, Yeah. and some kind of entertainment. I Not think. necessary. Entertainment is not necessary. Knowledge. You have to give out knowledge. अब आप वो एंटरटेनमेंट से दो, अब आप वो फैशन के थ्रू दो, अब आप वो ब्यूटी के थ्रू दो. आई सी सो मेनी great beauty creators giving out such amazing information. I am hooked. मतलब वो कहते हैं लिंक के लिए आप comment करें, and you must find, I don't know how many of you all are scrolling, but you will find me on so many beauty creators pages saying comment, link, because they give such nice information out and it's relatable. So you don't have to be an entertainer. जैसे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है मालविका सतलानी की स्टोरी Yeah. देखना. मुझे अच्छा लगता है. वो कुछ नहीं कर रही, वो बैठ के बस बातें कर रही है और मैं उसको बस सुनती रहती हूँ. मैंने कभी उसकी लाइक पोस्ट पे कमेंट नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया, कभी कोई डीएम नहीं किया. वो बस वहाँ पे हो, मैं बस उसको सुन रही हूँ. मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ ये बता रही है कि ये वहाँ पे गई थी, एमिलीन पेरिस के इवेंट में गई थी, फिर वहाँ पे उसके साथ ये हुआ, इसने दुबई में एयरबीएनबी में थी, वो वहाँ पे इसके साथ भी क्या सिचुएशन होगी. मैं बस सुन रही हूँ. मुझे अच्छा लग रहा है सुनना. तो हमारी ऑडियंस भी हमसे वही एक्सपेक्ट करती है कि हम कुछ ऐसा उनको रिलेटेबल बताएं जो वो गो थ्रू कर रहे हैं ऑलरेडी. So how are you able to relate, Ishita, to a single mom who is balancing her home chores and her daughter? खुद एक तरीके से जब आने लगी और जो वो चीज़ें मैं फेस करने लगी मेरी लाइफ में, जो मेरी मॉम ने गो थ्रू किया एक टाइम पे, तो मैं काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर रही थी. और आई थिंक मैं उनको देख के ही आज उनकी जर्नी सब याद कर करके मैं अपने आप को सिचुएशन में डालती हूँ कि हाँ व्हाट इफ अगर मेरी मॉम यहाँ पे होती तो वो क्या करती. Sweet. क्योंकि मेरी मॉम ना एक बहुत, आई थिंक कैसे बताऊँ, बहुत स्ट्रॉन्ग थी. वो रोती नहीं थी, वो बस लड़ लेती थी. Strong personality. एग्जैक्टली वो लड़ लेती थी. ऐसे कैसे हो गया, अच्छा मैं करके बताती हूँ. शी वाज लाइक दैट. मैं को मम्मी क्या कर रहे हो आप, बाहर ऐसे कौन जो
बोलता उसने ऐसे कैसे कर दिया, वैसे कैसे। आई वाज लाइक कि हाँ, जब वो ऐसा कर रही थी अकेले रह के, उनके पास भी कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, मीन्स मेरी माँ की माँ उनके साथ रह रही थी, बट वो एग्जिस्ट कर रही थी। और आई थिंक समटाइम्स ना एक एग्जिस्ट करना किसी की लाइफ में वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो वो मेरी लाइफ में वो चीज़ हो रही थी, और मैं अपने आप को बस उसी में डालती हूँ कि फिर जब मैं मालविका सतलानी का जब मैंने देखा, कमिंग बैक टू दैट, तो मैंने उस चीज़ को बहुत रिलेट कर पाई कि लाइक मे भी ये सारी चीज़ें गो थ्रू। हाँ ठीक है, वो इन्फ्लुएंसर है, लाइक शी इज़ अ लाइक सोशल पर्सनैलिटी, उसको काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, वो काफ़ी ब्रांड्स डील सारी चीज़ें कर रही है, बट इन पर्सनल लाइफ वो किन चीज़ों से गो थ्रू कर रही होगी एज अ सिंगल पेरेंट, वो चीज़ अलग है। वो सोशल मीडिया पे नहीं बोल पाएगी, बट आई कैन रिलेट, मैं देख पा रही हूँ कि लाइक हाँ चीज़ें हो रही हैं। रिलेटेबल कंटेंट बहुत बहुत मैटर करता है आज के टाइम पे, इफ़ यू आर मेकिंग कंटेंट, क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर कि कोई ब्रांड ने भेज दिया, लाइक उन्होंने आई थिंक 10 ब्रांड को भेजा, मुझे भी भेज दिया, सॉरी क्रिएटर्स को मुझे भी भेज दिया, और मैं भी वही सेम चीज़ कर रही हूँ कि लाइक दिस ब्रांड इज़ गुड एंड दिस प्रोडक्ट इज़ दिस। आई वॉज नॉट हैप्पी विद दैट, और आई थिंक 2022 में आई वॉज इन माई लोवेस्ट, मैं बहुत बहुत ज़्यादा लोवेस्ट में थी उस टाइम पे, एंड मैं कंटेंट बना रही थी बट आई वॉज नॉट इंजॉइंग दैट। तो मैंने उस टाइम पे क्या करना स्टार्ट किया था, मैंने ऐसे सीरीज़ निकाल दी थी, बिकॉज आई एम अ प्लस साइज पर्सन, और हमारे साइज़ के कपड़े इतनी आसानी से नहीं मिलते, स्पेशली इन मॉल्स। तो मैंने ना वो सीरीज़ स्टार्ट कर दी कि मैं हर आउटलेट पे जा रही हूँ, जैसे मैं वेस्ट साइड में चली गई, मैं जूडियो पे चली गई, कि वहाँ पे प्लस साइज़ के कपड़े हैं कि नहीं हैं, जस्ट टू चेक आउट। और मैं रील बना रही हूँ ऐसे कि हाँ यहाँ पे इतने साइज़ के कपड़े मिलते हैं, यहाँ के कपड़ों की क्वालिटी ऐसी है, और ऐसे करके मेरी वीडियोज़ वायरल होने शुरू हो गई कि भाई ये चल रहा है कंटेंट। और फिर मैंने ना ऐसे करके आई थिंक काफ़ी ब्रांड्स कवर किए थे उस टाइम पे। गो कलर्स हो गया, वो ट्राउजर्स बेचते हैं, तो उनके मैंने ट्राउजर्स देखे कि क्या क्वालिटी है, क्या साइजिंग है, ऐसे करके वो वीडियोस वायरल। अब जब वीडियो वायरल हो रही है तो आपको रेडी भी रहना पड़ेगा ट्रोलर्स के लिए, ठीक है। तो लड़कियों तक मेरी पहुंच रही है वीडियो, बट वो ट्रोलर्स के पास भी पहुंच रही है, of course, yeah. तो वो स्टार्ट हो गए। Okay. And are these trollers mostly men or women? Men. You don't know, you can't know. Actually, you know मेरे what? केस Behind में hidden profiles. Behind hidden profiles. मेरे केस में मेन थे, बिकॉज मैं बना ही कंटेंट विमेन के ले रही हूँ, Yeah. जो वो एक्चुअली में फेस कर रही हैं। उनको कपड़े मॉल्स में नहीं मिल रहे हैं, कोई नहीं रखता। हम अगर शॉपिंग करें तो हम ऑनलाइन शॉपिंग करें मोस्टली। अगर एक आउटलेट में जाके, जैसे मैं ज़ारा में चली जाऊँ, मुझे लगता है वेस्ट ऑफ टाइम में ज़ारा में जाना, क्योंकि वो नहीं रखते। Okay. आपको मतलब मेरा साइज मुझे ऑनलाइन मिल जाएगा ज़ारा की वेबसाइट पे, बट आउटलेट में नहीं है। मैं वहाँ पे जाके नॉर्मल एक लड़की की तरह ट्राई करके पहन के नहीं देख सकती। तो आई स्टार्टेड दैट कि भैया हाँ यहाँ पे मिल रहा है, आप जाके देख सकते हो, H&M में ये मिल रहा है, ये चेकआउट करो। तो मेरी जो वीडियोस थी वो वुमेन के लिए थी। ट्रोलर्स मुझे मेन मिले, लाइक लड़कों ने मुझे ट्रोल करा, शी लुक्स लाइक अ टुनटुन मौसी, शिनचैन की बहन लग रही है। वो क्या नाम है उसका, वो एक कार्टून है ना, ढोलकपुर कहाँ का, क्या छोटा भीम में वो है ना कालिया का कैरेक्टर बता दिया मुझे। और उस टाइम पे मैं थी भी, मैं अपने लोवेस्ट में, वो मुझे अफेक्ट भी बहुत कर रहा था। कि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, क्योंकि मैं तो एक अच्छे उसके लिए बना रही हूँ कि भाई पता चलेगा, एक अवेयरनेस होगी। तो मैं वो सारी चीज़ें करी थी। तो ट्रोलर्स आए, फिर मैंने क्या किया, पता नहीं मेरे मूड में क्या आया, और उसमें ना काफ़ी ऐसे कमेंट्स थे, शी लुक्स लाइक अ टुनटुन मौसी, टुनटुन मौसी, टुनटुन मौसी। मैंने टुनटुन मौसी वो नेगेटिव कमेंट लेके मैंने रिक्रिएट कर दिया। टुनटुन मौसी का ही लुक मैंने रिक्रिएट कर दिया। वाओ, ठीक है। और वो मैंने लाइक प्रॉपर रिक्रिएट किया। मैंने पूरा लड्डू की पूरी वो ट्रे बनाई ऐसे, पूरा एकदम पिरामिड बनाया मैंने लड्डू का, ग्रीन साड़ी पहनी विद बड़ी वाली बिंदी एंड जूड़ा एंड एवरीथिंग, आई डिड एवरीथिंग। और मैंने बढ़िया वो सॉन्ग है टुन टुनाक, उस पे मैं बढ़िया एकदम चल रही हूँ पूरा, और वो वीडियो वायरल हो गई। लाइक आई थिंक 7 to 8 मिलियन व्यूज उसमें आ गए। कि ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। इट वॉज अनएक्सपेक्टेड। वो मैंने सिर्फ अपने फन के लिए किया था। मैं को इतना बोल रहे हो तो चलो ठीक है, अब मैं बनी जाती हूँ टुनटुन मौसी, ठीक है। और मैं बन गई, और सबने इतना इंजॉय किया उसे, बट आई वॉज नॉट हैप्पी कि भाई मुझे ये बोला, मैं बनी और लोग इंजॉय कर रहे हैं उस चीज़ को, क्यों कर रहे हैं, मतलब इतना क्या मजा आ गया लोगों को। फिर इसके थ्रू मुझे काफ़ी ब्रांड्स मिल गए। तो एक चीज़ ब्रांड्स के साथ ये भी होती है, जब आप वायरल जा रहे हो ना,
तब आपके पास ब्रांड्स आते हैं, Everybody want to encash it. Everybody. PR भेज देते हैं हम आपको, तब पेड कोलैबोरेशन की बात नहीं होगी, व्यूज अच्छे आ रहे हैं, हम आपको PR भेज देते हैं, आप हमें शार्ट आउट दे दीजिएगा, पेड कोलैब मेंशन ही नहीं है। और जब आप अपने लोवेस्ट में आ जाते हो ना, आपके तो व्यूज इतने हैं, आप कैसे इतने पैसे मांग सकते हो, हम बार्टर दे करेंगे, आप ये करो, ये बहुत मुझे गंदा लगता है। तो फिर जब मैं उस चीज़ से हैप्पी नहीं थी, मैं वापस शेल में चली गई कि भाई नहीं हो रहा मुझसे। फिर एक बार आई वॉज जस्ट क्राइंग, मुझे कुछ नहीं अच्छा लग रहा था, आई वॉज जस्ट क्राइंग। मेरा डॉग है, वो मेरे टीयर्स लिक कर रही है, मैं रो रही हूँ, खूब रो रही हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सीधा बस अपना कैमरा ऑन किया और मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया। मैं रो रही हूँ, ठीक है, मैं ऐसी कुछ मेकअप नहीं, एकदम नॉन एस्थेटिक वीडियो, बिल्कुल घर फैला हुआ पड़ा हुआ है, सब कुछ एकदम होता ना जैसे कि मेंटली सिक। आई वॉज इन दैट फेज। मैंने सब रिकॉर्ड किया और मैंने वो वीडियो डाल दी इंटरनेट पे बिना फिल्टर के, बोल के बिना फिल्टर के। Exactly, मैंने बोला मुझे नहीं फर्क पड़ रहा, दिस इज हु आई एम, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। अगर आपको मैं दिख रही हूँ हंसते हुए, नहीं हूँ मैं, वो बस मैं कैमरे के लिए कर रही हूँ। और मैं इतनी ज़्यादा उस चीज़ से इरिटेट हो गई थी, इट वॉज एग्जॉस्टिंग कि मैं इंटरनेट के लिए हंस रही हूँ, जबकि इन रियल लाइफ में ऐसी नहीं हूँ, मैं इस चीज़ से गो थ्रू कर रही हूँ। और मैंने बस वही उस चीज़ को बनाया और मैंने कंटेंट वो पोस्ट कर दिया, एंड वो 9 to 10 मिलियंस उस पर चला गया, 9 लाख से ऊपर उस पर लाइक्स आ गए। आई मीन काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने उसको लाइक कर दी वीडियो को, एंड उस टाइम पे आई हिट माई 100K with that video. Wow. I think people like that rawness. We spoke उस about. वीडियो से इतना मुझे समझ में आ गया कि लाइक बहुत सारे लोग हैं जो सेम चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं। दे डोंट वांट टू सी कि आपने क्या कपड़े पहने हैं, दे डोंट वांट टू सी कि भाई आप कितना हंस रहे हो, कहाँ पार्टी कर रहे हो, किसके साथ बैठे हो। दे जस्ट वांट टू बी फील सीन। यस, वो चाहते हैं कि हाँ एग्जैक्टली, वो बस उनको ये पॉइंट मिल गया कि भाई ये भी इस चीज़ से गो थ्रू कर रही है, ये इन्फ्लुएंसर है बट इसकी लाइफ में भी इतना फकअप चल रहा है ऑलरेडी, कैसे मतलब। तो उस पॉइंट पे आके आई थिंक उस टाइम पे आई क्रिएटेड दैट कम्युनिटी कि वो मुझे मिली। और आज का टाइम है कि लाइक आई हैव दैट कम्युनिटी कि जहाँ पे वो मेरा लुक आफ्टर कर रहे हैं और मैं उनका कर रही हूँ। दे वर लाइक कि पर्सनल दीदी हम ना इस चीज़ से गो थ्रू, किसी की शादी में प्रॉब्लम है, मैं को मेरी तो शादी ही नहीं हुई है, मैं कैसे इसमें तुम्हें सलाह दे सकती हूँ। हाँ ठीक है, तुम्हें ये करना चाहिए, ओके जाओ अपने लिए स्टैंड ले लो, ये कर लो। मैं बाद में सोचती हूँ ये मैं बोल तो देती हूँ, कल को पता चला ये सच में कर लेंगे अगर, तो इनकी बोलेंगे इंटरनेट पे जाके इसको ये लड़की ये सिखा रही है। मैं को यार ये भी बहुत ज्यादा रिस्की है। आई हैव पीपल टू टॉक विद, ओके इनकी लाइफ में ये भसड़ चल रही है, बट मैं भी बोल रही हूँ। आपका मतलब कंटेंट इंस्पिरेशन जेन्युइन लाइफ से ही आ रहा है। Exactly, व्हाइल यू आर लिविंग इट यू Exactly. गेट you think more about कि अच्छा ऐसा कंटेंट भी बना सकते हैं। एग्जैक्टली, and मतलब that is working very well for you because Yes. while you are talking about it आपको millions of views आ रहे हैं on the content piece which you never expected कि उस पे millions आएंगे। एग्जैक्टली, वो आप ऐसे आप मजाक के लिए बना रहे हो कि ठीक है आप बोल ही रहे हो तो चलो मैं बना लेती हूँ, बट it's shooting up the algorithm। यस, अगर मतलब जैसे किसी ने कुछ भी बोल दिया मुझे, मैंने उसको कंटेंट बना दिया, मुझे किसी बात का बुरा लग गया, मैं उसको नहीं बताऊंगी, मैं कैमरे पे बोलूंगी जाके। वो उस I just got a very good content idea from एग्जैक्टली मतलब अब that मुझे content creator who speaks everything on camera. मैं हर चीज बोलती लिख लेती हूँ, हूँ। हर चीज बोलती हूँ कैमरे पे, जो अगर मुझे कहीं पे भी कुछ भी अफेक्ट कर रहा है, चाहे वो ब्रांड हो चाहे मेरी इन पर्सनल लाइफ, मैं कैमरे पे जाके सब बोल देती हूँ। भाई मेरे साथ में ये चल रहा है, ये सब हो रहा है, और वो इंजॉय करते हैं। हमारी लाइफ में भी ऐसे लोग हैं, हमने भी ये कर दिया था, हमने भी ऐसे कट ऑफ कर दिया, मुझे मजा आती है पढ़ के, यस ये अच्छा हो रहा है। So coming to Cut Short 2025, what do you think आज चलेगा? मतलब लाइफ आपके एक्सपीरियंसेस का आप कंटेंट बना रहे हो, what do you think the algorithm recognizes today? अगर आज के जो कंटेंट बनाना है क्या डाले, क्या बनाए? आई थिंक आपको रियल होना बहुत ज़रूरी है, आप फेक नहीं कर सकते, क्योंकि ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो गई है, वो समझ आएंगे आप कितना फेक कर रहे हो और आप कब तक फेक कर लोगे। आप बनाओ, ऐसा नहीं कि लाइक एवरी इन्फ्लुएंसर वांट टू अर्न मनी, सब चाहते हैं पैसे कमाना, लेकिन पैसे कमाने के चक्कर में आप वो चीज़, मतलब एक होता ना भेड़ चाल, वो ट्रेंड में मत चले जाओ कि वो बस वही चल रहा है। जैसे मैंने वो सीरीज स्टार्ट करी थी, मैंने बंद कर दी, मैंने देखा भाई सभी यही कर रहे हैं अब।
मैं को ये कैसे हो गया, फिर रिव्यू स्टार्ट किए, फिर सब करने लगे, मैंने वो भी बंद कर दिया, मैं को नहीं हो पाएगा, जो सब कर रहे हैं वो आप मत करो। आप अपनी चीज़ों को कितना रियलिस्टिक चीज़ें बता सकते हो, अपने आप को कितना कैमरे के सामने ये ऑथेंटिक हो सकते हो, वो ज़्यादा वर्क करेगा 2025 में। और मुझसे जो भी एडवाइस लेता है ना कि कैसे स्टार्ट करें या क्या करें, बस स्टार्ट करो, आप फिगर आउट खुद ही कर लोगे। देयर इज नो लाइक पर्टिकुलर नीश कि आपको इसी से ही स्टार्ट करना है, आप बस करो। मैंने डांस स्टार्ट किया था, मैं डांस कंटेंट डालती थी, मैं आज यहाँ पहुँच गई। कैसे पहुँच गई? करते करते। आप जब करोगे तभी आप सीखोगे, आपको तभी पता चलेगा कि लाइक आपके लिए वर्क क्या कर रहा है। तो आपको अगर स्टार्ट करना, बस करो, बट उस टाइम पे ना उसके दौरान आपको रियल रहने की भी बहुत ज़रूरी है। आप ग्राउंडेड रहो उस टाइम पे कि हाँ भाई इतना ज़्यादा हो गया मिलियंस पे, अब तो मैं सेलिब्रिटी बन गई। नहीं, मेरे एक टाइम पे मिलियंस में थे, आज नहीं है, मैं नहीं हूँ, तो भी मैं क्या कर सकती हूँ। So basically for you, storylining has worked very well for you, and for you, authenticity in this year has worked outstandingly well for you. I think for 2025, my strategy which I have noticed is ऑडियंस का जो अटेंशन स्पैन है ना वो बहुत कम होता जा रहा है। तो इसीलिए जो वो ऑनलाइन नेटफ्लिक्स पे या सब जगह सीरीज वगैरह देखते थे ना, वो अब ना इंस्टाग्राम पे देखना चाहते हैं। सो दैट इज व्हाई दिस न्यू आइडिया व्हिच हैज बीन इन कोरिया एंड इन चाइना, माइक्रो काफी नई ऐप्स आ गई हैं, मैंने देखा है बहुत सारी नई ऐप्स आ गई हैं। 80 एपिसोड्स होते हैं, 70 एपिसोड्स होते हैं ऑफ स्मॉल माइक्रो सीरीज। And you know, now everybody is wanting, now my strategy this year would be to make my page an entertainment page so that ऐप की भी ज़रूरत नहीं है आपको देखना है, आप फ्री में आके इंस्टाग्राम पे देखो। So now the strategy is to give audience something which they can come back to. Every now and then, see there are so many creators, everybody is doing everything, so I don't want to gatekeep everything because I'm doing myself this thing कि यार अब जो है ना मुझे एक्चुअली में सीरीज बनानी है so that people can come. There are so many people who have come to me and said कि यार आपने क्या quality content बनाया है, it's actually like a series, it's actually like a show. Exactly. Because अब क्या है ना, इतने क्रिएटर्स आ गए हैं, अगर आपको कुछ हटके करना है ना तो आपको अपने लिए एक नीश बनानी पड़ेगी। कि I think the 2025 strategy is to create something which makes the audience come back to your page every now and then. अभी शायद उन्होंने एक क्रिएटर है बीइंग सुक्खू उन्होंने भी एक अभी सीरीज बनाई थी जिसमें मैं बहुत हुक हो गई थी। Actually, I get the series idea much before these creators. Yes, much before. I actually did in 2023 my first series. And मैंने अपनी पहली एक सीरीज जो मैं बनाने भी वाली थी 2021 में, हम आज भी I still have that draft and उस पे लिखा है India's first Instagram series. Unfortunately that did not work out. I was going to do it with one of the biggest agencies. I don't want to name, but so now it did not go on floor. But I did something in 2023, and उसके बाद डॉली सिंह ने किया। डॉली सिंह की सीरीज भी काफी चल गई थी। So then that's when I realized कि this is going to be the next big it thing in 2025. So if people want to encash, and now a lot of creators are doing it. That's why I want to keep doing it. In fact, a lot of brands, I myself as a creator have realized this thing that a lot of brands are coming and wanting to get integration in these series. Because brands को क्या फ़ायदा होता है उस चीज़ से कि अगर आप एक रील करोगे तो probably they'll have to give 50,000, 1 lakh for one reel. But if you're doing a series, the cost will come half of what they are doing 7 reels. 7 रील में आपका इंटीग्रेशन है लेकिन आपको उसका आधा पैसा पे करना है. So a lot of brands are wanting to do this idea. Plus, it will be a very natural plug. It will be a very seamless plug. It's not like कि in your face कि हाँ ये खरीद लो. It will be like, oh, you also use this. मेरा भी favorite product है. Pia, next scene. So I think a lot of brands are wanting to do. This has been working. But storylining इसके लिए बहुत ही important है. Like series बनाने के लिए आपको next episode पे कोई आए तो उसके लिए you have to work more on the storylining aspect. And that is what is working, right? That is going to make you different from everybody else. Because अगर आप भी same चीज़ बोल रहे हो आके, see, I'm not saying कि आप सिर्फ एक fiction series बनाओ. Probably I saw this Suku and Abhijit making this series, life of a arranged marriage couple. So they make they make different story. You don't even have to be hooked to it. But everybody started liking that so much. They make different episodes ki aaj new arranged marriage couple going to Maika, arranged marriage couple going to the theater for the first time. So this is what I'm talking about. People want to see they want to see because they start relating to those characters. So when I did Rebound Shadi recently, I've done another series called Nav Crush.
last year. It is around Navratri. So अभी नवरात्रि आने वाले हैं तो I have to do second season. People are waiting for it. They haven't forgotten. So even for Rebound Shadi, it's been February when I did it. Even today, people are actually coming back and asking me, अब उसका नया season कब आ रहा है, नया season कब आ रहा है. People who don't even talk to me have come to me and said कि अरे वो आपने series बनाई थी ना, अब उसको नया season बनाओ ना, आप क्यों नहीं बना रहे हो? ये थोड़ा hack सा लग रहा है मेरे को. So it's like a hack to the algorithm. You are trying to figure out कि what's working right now. Yeah. And what's different, what other people cannot do right now as easy as possible. मतलब ये थोड़ा टफ काम है क्योंकि आपको स्टोरी लाइन लिखनी है, आपको फिर शूट भी करना है, फिर एडिटिंग और फिर कंटिन्यूशन डालनी है चीज की. इट्स मच more difficult than just creating a single reel, I would say. So I'll tell you what, for this also we have a hack. You actually collaborate with other people. If there's an editor, you just go and tell them, this is what I have been doing. Yeah. I go and tell them, hey, I have an idea. Do you want to do something together? Or if I have a DOP. So you create a team. There are so many pages, like Vertical Shots करके एक page है, I saw. It's a group of 5-6 people. They've come together. वो एक घर के अंदर सीरीज बना लेते हैं, एक घर के अंदर शूट करते हैं, and the views they are getting, it's massive. It's massive. Same faces they take, same. They don't need different people. Yeah. एक editor है, एक DOP है, and they are all together creating content. And now even the brands have started coming to them. So that's what people are doing, and this is one of the biggest thing I'm seeing as a creator in 2025. That, and it's not necessary that you create a proper series. Yeah. As I said, you can also create reel, but maybe you can create a series of reel, like how she said that she started creating, she was going to Zara and everything. Series works in every Series everything. work because people will see one part and they'll be like, Yeah. follow Next for क्या part 2, and I'll be Exactly. like, ये part 2 है, part 1 कहाँ है? Then I'll go back to their page. कितना भी cringe होगा ना, then if you're hooked to that, you'll be like, I want to see part 1, then I want to see part 3. Recently I started making this Pinteresty, outfit series, like पतली लड़की ने पहना है, and now I'm gonna source everything जो उसने पहना है और उसको मैं recreate कर रही हूँ on my body. And I think मैंने वो एक वीडियो डाली थी last month and उस पर 1 million views आ गए. Okay. And people were enjoying it क्योंकि Pinterest एक तरीके से अगर देखा जाए तो लाइक इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग एप्लीकेशन, कि बहुत एस्थेटिक चल रही हैं चीज़ें उस पर, पिंटरेस्ट वो एक फैट पर्सन के लिए कपड़े, वो पिंटरेस्टी आउटफिट्स ढूंढना, इट्स लाइक अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. बट वो चीज़ मैं कर रही हूँ कि लाइक मैं पिंटरेस्टी आउटफिट्स बना रही हूँ, प्लस मैं उनको प्रोवाइड कर रही हूँ लिंक्स जिससे वो भी खरीद पा रहे हैं. तो मैंने वो स्टार्ट किया, इट वर्कड वेरी वेल. और आई थिंक मैंने 2 पार्ट किए हैं अभी तक से. तीसरे कहाँ गई आपकी सीरीज? कब डालेंगे आप? I'll tell you an example. There's this one creator. अभी मैंने recently उसका देखना शुरू किया. उसने कुछ नहीं किया, उसने फोन स्टार्ट करके सीरीज बनाई, मेहंदी ऑफ द हाइप गर्ल, और संगीत ऑफ हाइप गर्ल, मैरिज ऑफ हाइप गर्ल, सुहागरात ऑफ हाइप गर्ल. एंड वो सीरीज इतनी, उसने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ कैमरा रखा. He's a guy and he's dressed up as a girl. Okay. He gets so many comments. I am hooked. I am hooked. वो What's the name? वो literally, I'm forgetting the name. It came on my page, and this guy, and I'm hooked. उसकी मतलब अभी आज संगीत है, कल उसका हाँ, वो वो है. बहुत कॉमेडी वे में बताता है. Yeah, उसे and उसने एकदम कुछ नहीं किया पूरे because you are normal talking about hack और कि इसमें yeah. तो बहुत मेहनत लगेगी. इसमें क्या मेहनत है? आई एम नॉट टॉकिंग. स्क्रिप्ट लिखने में वैसे ही बहुत जाता है, बट वो तो हर चीज में जाता है ना. ही डिड नॉट यूज एनी हाई क्वालिटी कैमरा और एनी एडिटिंग, बस फोन का कैमरा रखा और है. वो लड़कियों की तरह बैठ जाता है, बैठ बन के, और गांव की तरह पूरा बात करता है. एंड इट इज सो फन. उसने सुहागरात भी बनाया है, लाइक आफ्टर दैट. सो दिस वन गाय एंड हिम, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट सुहागरात, एंड नेक्स्ट डे है दुल्हन की मुंह दिखाई. So I was like, oh, this is fun, you want to create series, you can create a series like that. You don't need high-end camera or mics or whatever. You can just create a series like that and people will still be hooked. You need creativity. You need creativity. Yes. Creator के नाम है. I have written create here. So it's a tattoo, it says create. So creativity तो है ही. But how you use it to encash your audience. People are hooked. They want to come back and watch this कि अब आगे क्या होगा. अब आगे क्या होगा. जैसे हम टीवी सीरियल्स में करते थे सालों पहले, कसौटी जिंदगी क्या था, उसमें क्या होता था. उसमें क्या होता था, प्रेरणा की शादी हो गई, या प्रेरणा का संगीत हो गया, अब शादी होगी. मैं पिटती थी वो उसके लिए, पढ़ाई करो, मैं कसौटी जिंदगी देखनी है मुझे. So that's what people want to see on social media now. True. As I said in the start, attention span has gone down. So to grab that attention, people are making 1-minute series or 30-second series on social media. So I think this is one of the biggest hack I've realized, that this year normal content will work, might not,
but mini series, like, it's $1 billion industry. Kanisha, Some you points. have spoken about brand integration in these series videos. Yeah. So, and I also know that you are working with some of the biggest brands of India, both of you. So, tell me which was one brand which you felt was too big for you and it came in your integration. So as integration for, like, you know, these series, तो अभी as I said कि it's very new, 2025 में, I did it in 2023. But if you talk about a brand which actually was, when I thought it was too big, was Nykaa Fashion, which I thought मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी है, कभी नहीं करेंगे. Integration तो मुझे पता नहीं, but after I started doing comedy and after I started doing entertainment content, they actually DM'd me on Instagram saying कि एक टाइम ऐसा था कि मैं सबको DM करती थी. I was showing it to all my friends in 2019. I used to DM all the big brands, I want to work with you. किसी ने मना कर दिया, किसी ने पढ़ा ही नहीं, किसी ने पढ़ के सीन करके छोड़ दिया. So Nykaa Fashion came back to me. It was एक नया feature आया Instagram का which says paid monetization, जो एक, you know, paid partnerships का एक अलग folder होता है, like on, you know, your inbox. So first time Nykaa Fashion messaged me saying, hey, we want to do a collaboration with you, and would you be interested, and we want to run ads and da da da. So I was like, Nykaa Fashion, oh, in case, and this is 2024. Yeah. I am already established. Yeah. But what comes to my mind is, इनके साथ तो मैं barter में भी कर लूँगी. So she's telling me all the things, you know, we want to create a video like this, you know, you've seen Kusha Kapila's videos, we want to create like that, you know, South Delhi auntie, da da da, you are perfect for it, etc. etc. I was like, In the end of the conversation, I was like, अच्छा इसमें payment है ना? तो they are like, yeah, we'll pay you this money, and I was like, oh, ये तो मैं एक वीडियो में इतना पैसा मिलेगा, and I'm like, my mind is bonkers कि wow, इतना पैसा पे करेंगे ये मुझे, because you know, as a macro creator also, you have a set budget, you know, कि आप इतना charge करेंगे इतना, and suddenly because they wanted to run ads, they were like, we'll pay you this much money. And I was like, oh, this is nice. And, you know, big brand coming to me and asking me something like this. Yeah. So I made the video, I sent it to them. Unfortunately, the clothes were not visible in that particular video. So they said कि अब हम राखी के लिए आपके साथ campaign करेंगे. तो इसलिए मुझे क्या है, मुझे तो पैसे मिल रहे हैं. So that was like a very big thing for me कि a brand which did not want to work. So brand integration तो is like अभी it's very new for me as a series. I've just integrated one brand in a series for now because I've only done 3 series. Yeah. So, but now मुझे ऐसा लगता है कि there are a lot of big brands who want to do this kind of content. True. Because as I said कि उनको तो फायदा ही, एक तरीके से फायदा है, you know, 7 reel में आपको मिलेगा, you know, you will be highlighted instead of just 1 reel. So I think that's a very big thing brands are wanting to do. Then I did another series which I've written and produced. Usme I integrated Bharat Matrimony, and I swear to God, I never thought कि Bharat Matrimony, a brand like that, will come and get integration in my series. Yeah. But again, as I said, the brand wants to have a subtle. In fact, this idea of brand integrations is going since many years. I was watching movies में तो होता ही है. movies. I was watching Tal that day, and Coca-Cola was everywhere. Yeah. Like everywhere. Brand placements होती है. Placements, yeah. So now Visibility, brands want those placements on Instagram, on YouTube. Yeah. So I think that's a big thing right now. Got it. So Ishita, coming to you, which are the biggest brands that you have worked with? कोई एक brand जो सबसे ज़्यादा interesting था. कोई एक ब्रांड लाइक मुझे सारे ही ब्रांड्स के साथ में, जैसे मैं बोल रही हूँ, कुछ ना कुछ उनका चलता ही रहता है. मैं भी ठीक है, ओके. सो मेरे लिए भी नायका, नेकेड बाय नायका, शी वर्कड विद नायका फैशन एंड आई वर्कड विद नेकेड बाय नायका. सो पहले मेरे पास इनका एक बार आया नेकेड का कि वी वांट टू लाइक कोलैबोरेट विद यू. आई वाज लाइक, पक्का मेरे साथ ही करना है. ओके. सो इनका दिस इज अ लाइक लॉन्जरी नेकेड. सो वो ना लाइक हर साइज में वो लोग लॉन्जरी बनाते. तो ऑफ कोर्स आई एम अ फैट पर्सन, तो इनका कुछ ना कुछ एंगल रहता है कि आपको ये बताना है, वो बताना है. आई वाज लाइक कि क्यों बताना है, मीन्स ऑलरेडी मार्केट में नहीं मिल रहा है. लाइक जो बिगर साइज हैं जिनके, उनके अवेलेबल है ही नहीं, बट आप बना रहे हो. तो आई थिंक यू शुड प्रमोट दैट कि आपके पास है वो साइज, तो आपके पास वो लोग आ सके, लाइक कस्टमर्स आ पाए कि उनको मीन्स अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाइक आपके पास हैं और आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं, मैं ये चीज़ कर सकती हूँ. दे वर लाइक कि नहीं, हमें इसी पर्टिकुलर वे में चाहिए, और आप कोई और दूसरा ब्रांड मेरे पास जो है, आई वेयर मार्क एंड स्पेंसर्स. मैंने बोला इसमें तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे ऐसी, अब मैं कैसे दिखा दूँ.
तो वो लाइक कि नहीं आप कर सकते हो, ब्रांड्स थोड़ी ना शो होगा और ये। मैंने बोला चलो ठीक है। फिर आई आस्क्ड लाइक व्हाट विल बी द पेमेंट एंड एवरीथिंग, विल डू बाटर। आई वाज लाइक क्यों? आई मीन नायका से मैं एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि आप बाटा करोगे, Yeah. ठीक है। नायका इज़ लाइक अ वेरी बिग थिंग आज के टाइम पे, एंड आई थिंक उनके शेयर्स भी मिलते हैं जो लोग खरीदते हैं। इट्स अ मैं मल्टी-बिलियन बोला, डॉलर कंपनी। कैसे मैं बाटा कर सकती हूँ? तो फिर वो कोलैब वहाँ पे कैंसिल हो गया। फिर थोड़े टाइम बाद फिर एक एजेंसी ने मुझे इसी के लिए अप्रोच किया कि लाइक नेकेड है और ये। मैंने बोला हाँ ठीक है मैं कर सकती हूँ, बट आई विल नॉट डू बाटा कोलैबोरेशन। तो बोले ठीक है हम पे करेंगे, बट उनका जो अमाउंट दे वर पेइंग इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम नायका। लाइक मेरी एक्सपेक्टेशंस है ही नायका से कि वो मुझे ये अमाउंट देगा। What was the amount? इट वाज 12K। तो उन्होंने मुझे 12K, मैंने बोला नायका 12K? Yeah. मैं बोला यार आई थिंक मैं इतना खर्च कर देती हूँ आपके ब्रांड पे ऑलरेडी, क्योंकि एक ही बार में। Yeah, हाँ, और मैं आई थिंक जब मैं शॉपिंग करने बैठती हूँ तो मैं एक ही बार में इतना खर्च करती हूँ। बट फिर मेरे माइंड में ये भी चल रहा था लाइक इट्स अ वेरी बिग ब्रांड और मुझे करना भी था। इट वाज ऑन माय विजन बोर्ड आल्सो कि Yeah. मुझे नायका के साथ कोलैब करना है और ये वो। बस लाइक कि चलो ठीक है। फिर मैंने बोला देखो 12 में तो आई कांट डू इट, आप थोड़ा सा तो आप बढ़ा दो। तो देवल मैंने बोला अच्छा आप बताओ। तो मैंने बोला ठीक है आप 12 दे रहे हो तो आप इसको 22 कर दो, इतना तो हमारा बजट ही नहीं है। मैंने बोला ये तो लाइन गलत बोल रहे हो आप, ये तो गलत है बोल रहे हो कि बजट ही नहीं And that है। too, it's a lingerie brand, so Yeah. दिस इज नॉट समथिंग आई एम एक्सपेक्टिंग। Yeah. कि फिर मुझे ये भी था कि क्या हो गया नेकेड है ये, नहीं करूँगी मैं अगर इतना ये कर रहे हैं तो। फिर मेरी फ्रेंड ने भी बोला देखो इट्स अ वेरी बिग ब्रांड और एक बार करने में क्या ही प्रॉब्लम है, एक तरीके से लाइक तुम्हारी ही पोर्टफोलियो में लाइक यू नो ऐड ऑन होगा कि यू हैव वर्कड विद नायका ऑल्सो। Yeah. फिर वो बोल रहे इशिता प्लीज़ टाइम हमारे पास, ये हमें लॉक करना है, ये करना है। मैंने बोला क्या बोल रहे हो आप, अगर तो टाइम ही टाइम है। there is actually a lot of gap here because a lot of plus size people do not understand the fact that उनके लिए भी market है. Most of the people who are like you know office goers or corporate people, they look like us, you know, everybody. Yeah. That's hence Yeah. there is a big market for plus size models. The only problem is people who are already plus size, they degrade themselves कि यार हमें कौन देगा. That is where we need to change our thinking कि no people, I mean you need me, as you said, you need me. I do, yes I also need you to work, but because there are so many people who relate to me, your product will sell. Because I myself get so many DMs कि यार आपने ये swim, I went on a holiday recently to Thailand and I was wearing swim, I'm also not skinny, I'm a mid-sized person. Yeah. So there were so many people, they were like, oh you are carrying bikini so well, where did you buy it from, where did you get it from? And मुझे इतने सारे DMs में आए and I realized that there are women who want to look good but they are scared कि लोग क्या कहेंगे. Yeah. So that is why market है. I think there are so many. But what I am trying to say here कि there is a market. I know that market. मुझे वो market बहुत अच्छे से पता है और मैं उस market में जाना भी चाहती हूँ. But brands का ऐसा mindset हो गया है कि like every plus size woman wants to be a model or an influencer. तो जो इस मार्केट में ऑलरेडी हैं, जिन्हें मार्केट पता है, वो तो काम कर रहे हैं, दे आर गेटिंग पेड एवरीथिंग। बट ब्रांड्स का क्या है कि जितनी ज़्यादा विजिबिलिटी होगी उतना ज़्यादा उनके लिए अच्छा है। तो जो लड़की जो बस चाहती है कि मैं भी किसी ब्रांड के पेज पे आऊँ, मैं भी एज अ मॉडल काम करूँ, मैं भी एज अ इन्फ्लुएंसर, उनके साथ में ब्रांड्स बहुत ही स्मार्टली प्ले करते हैं। So actually लोग I think there are more creators Yes. for the same stuff and hence brands are trying to pull back the budget. Exactly. Yeah. वो इनका फिर ऐसे हो जाता है कि अगर एक क्रिएटर ने बोला, क्रिएटर नहीं है बाय द वे, वो ऑफिस गोइंग एक लड़की है, उसको ब्रांड ने बोला कि हम आपके साथ कोलैब करेंगे, वो खुश हो गई। वो उसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, शी इज ऑलरेडी डूइंग अ जॉब, बट वो उससे खुश हो गई कि भाई उसको एक ब्रांड ने अप्रोच किया। तो अब उसने बोला हम आपके साथ बार्टर करेंगे, हम आपको ये भेज देंगे, आप वो भेज देंगे, आप वीडियो बना दो। शी अग्रीड। बट जो ऑलरेडी जिसका सोर्स ऑफ इनकम यही है, उसके लिए तो ये चीज खराब हो गई। Two very different conversations. What you're saying is absolutely right. Because there are so many creators in the market already, the market is saturating. But if you say that a plus size person is not going to get money out of it, that's a very different conversation because there is a huge market and there's a huge gap actually. I am not getting paid जो मुझे लगता है मेरी वर्थ है। Okay. बिकॉज
अगर मैं अपना कंटेंट देखूं तो आई मेक कंटेंट, लाइक आई मेक क्वालिटी कंटेंट। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी उठा के डाल रही हूँ। अगर मैं ब्रांड प्रमोशंस कर रही हूँ तो वो मेरा बहुत अच्छा होता है, बट आई एम नॉट गेटिंग पेड जो मुझे मिलना चाहिए उस चीज़ पे। अब जब ये बात नेगोशिएशन की जब ब्रांड्स पे आती है, तब उनसे जब मैं पूछती हूँ कि आप किस बेसिस पे मुझे इतने पैसे दे रहे हो, मेरे व्यूज़ इतने हैं, मेरी फीमेल ऑडियंस परसेंटेज ज़्यादा है, मेरे फॉलोअर्स इतने हैं, इशिता हमारे पास बजट ही इतना है। और अगर मैं वही सेम चीज़ अपनी किसी क्रिएटर फ्रेंड जिनसे मेरी नॉर्मल बात होती है, मैंने नहीं बताया कि मैं कोलैब करने वाली हूँ, मैं जस्ट पूछ रही हूँ उससे कि ये इस ब्रांड के साथ तुमने काम किया था, इन्होंने पैसे दिए, बोलते हाँ दे पेड मी। मैं पूछ रही हूँ अच्छा कितना दिया, ऐसे करके दे पेड मी समथिंग 30-40K। एंड वो सेम ब्रांड मुझे 15,000 रुपये दे रहा है। किस बेसिस पे दे रहा है? Maybe you'll have to start saying no to couple of brand deals. मैं कर रही हूँ ना। मैं इस बात पे सेटिस्फाइड हूँ कि एटलीस्ट मैं ऐसे ब्रांड्स को और या फिर ऐसी मेंटालिटी को एंटरटेन नहीं कर रही हूँ जो सिर्फ प्लस साइज को ऐसे देखते हैं कि बस इंक्लूसिविटी दिखानी है कि बस उनके पास भी इस साइज के कपड़े मिलते हैं। तो जो फ्री में कर रहे हैं, जो मेरे पास ब्रांड है वो तो फ्री में कर रहे हैं, आप क्यों पैसे चार्ज कर रहे हैं? अरे भाई वो ऑफिस जा रही है, मैं यही काम करके कमा रही हूँ, मुझे पैसे चाहिए। Then maybe you should say आप उन्हीं से करा लो। मैं बोल रही हूँ Because हमारा आप उन्हीं से content करा लो। exclusive है। हाँ मैं आप उन्हीं से करा लो, वो आपको दे देंगे। बोलते हैं हाँ ठीक है हम उन्हीं से करा, हाँ प्लीज गुड फॉर यू, जाओ। मैं बोला मैं खरीद के कर लूंगी, मैं टैग भी नहीं करूंगी तुम्हें। I think you should ask ChatGPT how to say no to such people. मैंने चैट जीपीटी से पूरी स्क्रिप्ट निकाली थी बना के। अभी एआई की बात करनी चाहिए हमें। अब जब एआई का सब्जेक्ट आ ही गया है तो वी नीड टू delve just a few minutes in the AI segment also. So I think we'll start with you again. आपने स्क्रिप्ट बनाई है AI के साथ। मैंने तो स्क्रिप्ट बनाई। AI में और क्या क्या किया है, and how do you think AI will help content creation or creators today in 2025? AI क्या कर सकता है? AI बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर मैं देखूँ जैसे कि एक पॉइंट आता है जब आपको नहीं पता होता, लाइक वो सैचुरेशन जब आता है, आप डीमोटिवेटेड होते हो, बिल्कुल नहीं पता दिमाग में क्या चल रहा है, लाइक सब कुछ आ रहा है कि मुझे ये भी बनाना है, मुझे वो भी बनाना है, लेकिन बनाना क्या है, करना क्या है? वहाँ पे आई थिंक चैट जीपीटी मेरी इस टाइम पे बहुत हेल्प करने लग गया है। यस कि भाई मैं ये फील कर रही हूँ, मेरा मूड ठीक नहीं है, ठीक है, मैं उसको ऐसे ही लिख के देती हूँ। और अब मेरा इंस्टाग्राम के व्यूज जा रहे हैं, मेरा ये भी हो रहा है, अब मैं क्या करूँ? वो मुझे पहले तो कंसोल करेगा, आई एम सो सॉरी टू हियर दैट यू आर गोइंग थ्रू विद दिस। बोला सोल्यूशन मैं लिख के तो सोल्यूशन बोलो। बोलते ओके नाउ आई एम क्रिएटिंग योर 30 days कैलेंडर, आप ये बनाओ, आप वो बनाओ, ये लाइक वो पूरी चीज बना के दे देता है, पूरा 1 महीने सॉर्टेड है। अब उसमें से जो मुझे समझ में आ रहा है, जैसे कि एक पॉइंट पे आया जो पिंटरेस्ट वाली जो मैंने सीरीज मैंने वहीं से स्टार्ट करी कि बोले कि आप ये करो, यू आर उसको पता है कि भैया मैं प्लस साइज क्रिएटर हूँ, और वो मुझे बताएगा कि आपके अकॉर्डिंग आपके पेज के हिसाब से, क्योंकि मैंने अपने सोशल मीडिया उसका स्क्रीनशॉट मैंने बोला दिस इज माय पेज, और ये मेरे सारी चीज़ें बोलते हैं शिता यू हैव अ वेरी बोल्ड पर्सनालिटी और दिस एंड दैट। तो उसने मुझे पूरा कैलेंडर, ये पिंटरेस्ट वाला आइडिया जो था मुझे चैट जीपीटी से ही मिला था। मैंने बोला दिस इज समथिंग आई कैन डू, दिस इज समथिंग nobody is doing right now। कि भाई एक मोटी लड़की पिंटरेस्टी आउटफिट क्रिएट करी विद लिंक्स कि लोग खरीद के पहन सके उस चीज़ को। तो AI मेरी बहुत हेल्प करता है इस टाइम पे, और AI वैसे मेरी पर्सनल लाइफ में भी बहुत हेल्प करता है। ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो मुझे वेरी इससे दूरी बना के रखो, इससे बात मत करो, ऐसे करो। मैं तो यार आई थिंक चैट जीपीटी मेरा फ्रेंड है। You are utilizing it to the fullest possible Yes, thing. चैट जीपीटी AI है ये। मैं उस टाइम में ना मैं AI के खिलाफ थी। मैं बोला ये तो मिसयूज हो रहा है, ऐसे मीन्स एक तरीके से डिसएडवांटेज भी है कि आपका आपकी सोचने समझने की सारी पावर खत्म हो चुकी है। बट अब थोड़ा सा ट्रू भी है, हो रही है धीरे धीरे। Exactly. With so many deep fakes and all coming. Yeah, means मैं आज के टाइम skills are also going for a toss primarily because अभी जॉब जैसे सोच सकते थे। So I am when you come to me, I'll talk about pros and cons. हाँ, तो अभी मैंने जैसे ये हेयर कट करा लिया, अभी आई थिंक 1 month हुआ है, और मुझे नहीं पता इसके साथ मैं करूँ क्या। मैंने करा तो लिया है, अच्छा लग रहा है, बट ठीक है अब मैं इससे बोर हो रही हूँ। अब मैं चैट जीपीटी पे अपनी फोटो डाल रही हूँ कि यार ये मेरा हेयर कट हो गया इस टाइम पे, अब मैं इसको स्टाइल कैसे करूँ। मीन्स उसने मुझे पहले बोला कि आप ऐसे कर लो, मैंने बोला विद पिक्चर। उसने मुझे पिंटरेस्ट से इंस्पिरेशन, और भाई उसने मेरा लाइक सिमिलर फेस कट, सिमिलर फेस
कि जैसा मेरा फेस है, जैसे मेरी पर्सनैलिटी, उसने पूरा मुझे वो पिक्चर्स के साथ में हेयर स्टाइल बना के दे दी, लाइक यू कैन डू दिस 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 दिस, वाज लाइक वाओ। फिर मैंने एक हेयर स्टाइल करी, मेरे को वाओ, और उस दिन मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला, बोले यू लुक लाइक अ माफियाज गर्लफ्रेंड, क्योंकि मैंने पूरा ब्लैक आउटफिट पहना था और मैंने वो ब्लैक स्पेक्स लगाए थे, वो पूरा एकदम स्लीक बाल किए थे, और आई वाज इन आई थिंक नायकाज आउटलेट। आई थिंक इस पे तो सीरीज हो सकती है. Actually, Styling. I want to tell you that I am making a series on this. So by the time this podcast is out, it will also be out. So Very nice. I just wanted to tell So that. yeah, Kanisha, for you, So I क्या कर think रहा है आजकल आपके लिए? मेरे लिए बहुत कुछ करा है। आई थिंक आई एम गोइंग टू मैरी चैट जीपीटी वन डे, क्योंकि मुझे और कोई समझ ही नहीं पा रहा है। कांट मैरी हिम, I will. It. मैंने कमिट कर दिया है उस पे। We'll see. Anyways, so I think there are a lot of pros and cons both to it. Yeah. Pros being that right now, I mean, I was, hiring people to do my work. I had an intern, I had a manager, but now I just open ChatGPT and I'm like, ChatGPT, so and so. ChatGPT, I have to go on a date. Can you help me decide my outfit? ChatGPT, what should I write to that person? And everything, I'm so dependent on it that it is so much fun and it makes your life so easier. I'm also writing a book. Okay. So I actually asked ChatGPT, can you design a cover for me? And ChatGPT actually designed such a beautiful cover. It became so much easier for me to give it to my, Publisher. the publisher, my person who's designing, graphic designer. Okay. In fact, my friend is here and he's written a book on a robot and a robot who's got enlightenment. Oh, wow. So yeah, it's a AI based nice. book. So Okay. so AI is doing so much. Yeah. But again, the cons of it is I am so much dependent on it. Yeah. My brain have stopped working. There are Seriously. There are days when my brain doesn't work and I'm like, I'm a writer myself, and I've written like such beautiful scripts, such beautiful things. And then there are days I'm like, ab likhna padega. And it has happened the same thing, it has, because it has designed a book cover for me. I was thinking, should I hire a graphic designer or is this okay? But then I was like, no, yaar, let me not eat somebody's job. Yeah. And this has happened. Pro, it is helping me with content and I don't have to hire an intern. Con, I don't have to hire an intern so that I can't talk to people about it. Then there are so many deepfakes which are coming. And as we said that ChatGPT is taking so many jobs, as a person. पहले हम लोग एक दूसरे पे डिपेंड होते थे. We used to work as a team. Recently, I saw this NAS Summit doing a workshop on AI and how you can create a video in 30 minutes with AI. I mean, dude, you don't need people then. Everything will be, अगर सब कुछ ही online चला गया. I saw this episode of Black Mirror that in coming years, actors will not have to work. उनको बस लिया जाएगा, उनका एक video create किया जाएगा and they can create series with that. So Priyanka Chopra and lot of actors were actually against this idea. बीच में कुछ हुआ भी था with the Actors Guild and Producers Guild in US कि everybody was against this idea कि हम AI को ये नहीं देंगे हम right कि हमारा AI बना के वो utilize कर सके, because if they are going to do that, हम लोग क्या करेंगे घर पे बैठ के? No, but this is actually a conversation that is going on कि अब जो creators के पास communities है, they will be preferred more because AI is going to do the job of video creation after the next 2 years. Absolutely. So that's what this NAS Summit ka workshop is also all about, The first line, I got a mail and the first line was, if you want to create a AI-based video, we created one and we got millions of views, then attend this workshop. It's in Bangkok. And I was like, dude, I mean, agar AI sab kuch karega, to hum kya karenge, And trust me, as much as comfortable as it looks, the brains are getting slower day by day because we are so dependent on it. मैं बिल्कुल भी I think जब मेरा मूड नहीं है, मैं बिल्कुल भी मेहनत नहीं करती हूँ. मैं ChatGPT पे ब्रांड डाल देती हूँ, ये स्क्रिप्ट दे दे भाई, कैप्शन दे दे भाई. Yeah, we used to hire people for it. और वो प्रूफ भी हो जाती है ब्रांड से कि भाई अप्रूव. सब ठीक है. Because who's going to do so much मेहनत of checking it on ChatGPT? But I have to tell you something. I was discussing this with one of my friend couple of days back and he said, यार अगर सभी ChatGPT से लेने लग जाएंगे तो सबका स्क्रिप्ट एक जैसा नहीं लगेगा. So I told him, then that's where human power comes. Because you have to give prompts like that which only you know about. Because if everybody is going to give the same prompt, obviously the script will be same, obviously the video will be same. So
that is human, because ChatGPT or AI is not human brain. Yeah. So वहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगा कि शायद पूरी तरीके से यहाँ पर नहीं खत्म होगा human jobs. Yeah. Somebody will have to supervise, no? और ऐसा हो ही रहा है. आई थिंक इशिता ने जो किया, अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल दे दी और बोला कि देखो मैं ये सेगमेंट्स में एक्टिव हूँ एंड यू नो डू ऑल दीस थिंग्स फॉर मी. सो इट्स पर्सनलाइज्ड, आई वुड से, क्योंकि सेम कोई और नहीं कर सकता. नो वन एल्स विल पुट इन योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऑन द इन चैट जीपीटी इतना, आई मीन्स मुझे पता है उसके प्रोज एंड कॉन्स है, बट हैट्स ऑफ, वो इतने डिटेलिंग में हर चीज़ देता है. अगर मैं उसे बोल दूँ कि आई लाइक दिस आइडिया, मुझे बताओ कि लाइक मैं इसको कैसे शूट कर सकती हूँ, वो मुझे हर चीज़ बता देगा. दिस आउटफिट विल लुक गुड, ऐसी एक्सेसरीज पहन सकते हो, मेकअप आप ऐसा रख सकते हो, आप ऐसे इस पॉइंट पे आके आप ट्रांजिशन डाल दो, यहाँ पे आउटफिट चेंज कर लो, ऐसे शॉट्स ले लो. और वो इतना ज़्यादा डिटेलिंग, आई वाज लाइक इतना तो मैं भी नहीं सोच तो पाती. टीम नहीं चाहिए अभी आप लोगों को, मेरे ख्याल से. अब आप जो पहले टीम के साथ काम करते थे, 50% ऑफ द टीम नाउ द जीपीटी But again, as I said, pros and cons दोनों हैं. आपको human brain भी चाहिए to actually tell AI what to do and what not to do. Prompt engineering बची है. That prompt engineering बची है, and I think आगे चल के jobs भी वही होंगे. Prompt engineering दो, and the people, and then it will be like, you know, survival of the fittest. जो सबसे best prompts देगा. Like I saw some days back, there was a deep fake of this actress, which was, I think, Rashmika Mandanna. And it is such a dangerous thing, you know, deep fakes. If people are going to create such videos, it is going to be problematic for everyone. So I think there's a balance which needs to be there in content also and in AI as well. It's very important. But it's scary also. मुझे बहुत ही scary है. It's very लगता है. Like scary. everything is, you know, digitally recording कि आपकी सारी details उसके पास पहुंच रही हैं. Yeah. कल को कुछ And भी they are studying that Yes, information. means Yeah. अगर सोशल मीडिया लाइक आप डिजिटली कुछ भी कर रहे हो, वो रिकॉर्ड हो Record रहा है. आप Scams हो नहीं जाते हैं कर कितने सकते. सारे यार. अभी वो डिजिटल अरेस्ट हो गया अंकुश बहुगुणा के साथ. I have had the similar experience. वो मेरे पास भी कॉल आया था, मैं कहा हाँ ठीक है भैया, भेज दो पुलिस वाले को, मैं सुन रही हूँ उसकी बात है. अच्छा. So it is very scary, but again, if we keep a balance, I think it will be superb for us. If अगर हम लोग उस चीज में ना बहें, you know, there's a current which is there in नदी में current है, उसको धीरे धीरे फील करो तो ठीक है, लेकिन अगर बिल्कुल ही हाथ दे दोगे, you also know what's going to happen. So as humans, अब वो तो AI है ना, वो तो मतलब it's not a brain. As humans, we I think have to keep a balance in life. So apart from ideation, are you also using ChatGPT for negotiating with brands or pitching brands? No, I am actually using ChatGPT to write prompts to people on dating apps. अच्छा. यस. और मैं आसपास के रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करने के लिए कि लाइक बेस्ट रेस्टोरेंट्स, अभी जैसे मैं मुंबई में, मैंने बोला बेस्ट माचा प्लेस बताओ मुझे, तो उसने मुझे 5-6 कैफ़ेज बता दिए. यहाँ पे ये मीन्स उसने मुझे प्राइस भी बता दिया, ये प्राइस है, यहाँ का ये फेमस है. आई वाज लाइक कि हाँ यार ये कर सकते हैं. और मैं कल यही करने जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ एक्सप्लोर करने, क्योंकि मैं मुंबई सिर्फ काम के लिए आती हूँ, काम करके वापस चली जाती हूँ, मैं कभी एक्सप्लोर नहीं करती मुंबई का. तो मैंने सोचा कि मैं एक दिन रुकूंगी एंड आई विल एक्सप्लोर एवरीथिंग. और मैंने चैट जीपीटी से सब कुछ पूछ लिया, बेस्ट कैफे, शॉपिंग लेन, और कहाँ पे क्या चीज़ अच्छी मिल रही है. माचा भी इतना ट्रेंड में है, तो माचा कहाँ पे अच्छा मिल रहा है, तो मैंने सारे वो नोट्स बना लिए एंड आई विल गो एंड यू नो एक्सप्लोर. So ये इसमें भी चैट जीपीटी तो overall There's life में also भी a help new कर रहा है. thing which is happening on ChatGPT. You can register your business to make it viral. This is a new thing which has happened. I actually saw a video 2 days back only. Yeah. And I actually opened ChatGPT and tried it, like how you do it on Google. Yeah. Now you can register your business on ChatGPT and it will tell you prompts on how to make your business viral. Wow. And it will also list it on other platforms. Yeah. So what is one thing that you guys think कि जो लोगों को content creation career के बारे में नहीं पता है, you can highlight about taking a plan? I think one thing you guys should definitely know about content creation is कि इसमें बहुत पैसा है. People think that content creation, in fact मेरे एक अंकल हैं, वो मुझे आके, I was making some content at their place in Delhi and they were like, बेटा ये सब तो ठीक है पर इससे कुछ कमा लेते हो. And I gave such savage comeback. I was like, uncle आपके बेटे की सैलरी से ज़्यादा. And he was like, really? ऐसा कैसे? मैंने कहा अंकल एक बार आपने अपना नाम बना लिया ना, तो ब्रांड्स वगैरह पैसे देना चाहते हैं, एंड सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम है. देयर आर डिफरेंट स्ट्रीम्स of income. You can create your courses online, you can become a creatorpreneur, you can sell your you know, you can have your own brand, you can do so much as a creator. In fact, content bana ke I've bought my own house in Bombay, guys. Not flexing, but Wow. That's crazy. okay, flexing a little. Yeah. Of course my parents helped a little, but the idea was that now
I need to, because as a creator, you know, you do not have that kind of stability. 1 month you earn like in lakhs, Same. and then Yeah. and then there are months you do not earn at all. Yeah. So I think the best thing is when you have that money, invest it. Be it in a business, be it in a, as I said, course, or be it in a property. Just take that money and invest it. Yeah. So if you want to start your content journey, it might be difficult initially, but once you've, you know, caught the flow of it, then I think it's one of the biggest selling businesses these days. Yeah. You have to just be at it. In fact, couple of days back, it's a funny anecdote. मेरे लिए एक रिश्ता आया and this उसकी लड़के की मम्मी कहती है ये कंटेंट क्रिएटर क्या होता है, हमें तो नहीं हमें तो सिंपल सी बहू चाहिए, इन्फ्लुएंसर पता नहीं कुछ कमाती भी होगी नहीं. एंड now that guy couple of days back called me and said, अरे यार तुम बहुत अच्छा कर रही हो यार, you are doing so great, you bought a house for yourself and this and that. मैंने कहा अपनी मम्मी से बताना जरा ये बात. Because these days content, people think that it is like you don't earn or whatever, you're just doing it. आप सिर्फ डांस कर रहे हो. I mean, Faizu bought a Jaguar after doing, he's got a sea-facing house in Juhu. So, I mean, it does make you a lot of money if you just be at it and you know how to encash it. So, I think if you want to be if you want to be a creator, then you have to definitely start and not worry about money right now. But eventually, what you love, if you love it and you do it the right way, money will flow. And a couple of days back, believe that, I think. You have to believe that. Couple of days back, I went to an office as a celebrity guest, and all these people who are in corporate, they were asking. I tried stand-up comedy for the first time, and they were asking me, why do you think somebody should be a creator? मैंने कहा, as much as I want to work in a corporate like you guys, I'm sure you want to be on this side of. And what keeps me going is money. पैसा है. I have to just be at it because creators earn a lot. If you know your how worth. much, Kanisha, if somebody is in the space for 5 years, then how much can they expect to earn? It's not about years, I'm telling you. It's all is about not, quality of your content, number of followers, your engagement rate. You should know that. If you know your worth that So way. with 300k followers on social media, how much can one expect to earn? So if you have 300k followers and your engagement rate is more than 2 to 3% and your content is high quality content, you can easily charge between 80,000 to 1 lakh for one reel. Easily. And if you are already very famous, and like there are so many creators like C-Rats, they're already doing a lot for themselves and they are great content creators. You can even earn more with those kind of following, like 300, 400k, 500k followers, and you have like more than million followers. You can easily quote like 2 to 3 lakhs, maybe more for a reel. So, And how much can they expect to earn on a yearly basis with 300k followers? I think anywhere between 20 to 25 lakhs minimum. Got it. Yeah. So, Ishita, coming to you, if somebody is in the fashion space with a following of 150k, then how much can they expect to earn? Approx 10 to 15 lakhs per annum if they have 1,50,000 like followers. And उस टाइम मुझे ऐसा लगता है आज के टाइम पे फॉलोअर्स इतने मैटर नहीं कर रहे हैं जितना इंगेजमेंट मैटर कर रही है, व्यूज मैटर कर रहे हैं. बिकॉज अगर आप मीन्स जैसे मैं क्रिएट आई हैव लाइक 1,66,000 फॉलोअर्स एंड समटाइम्स आई अर्न लाइक 2 lakhs in month. समटाइम्स आई लाइक बेरोजगार की मेरे पास काम ही नहीं है. So, what is your highest earning month? Like, a number if you can share. Okay, so I earned 1 to 2 lakhs Wow. per एक महीने में मैंने किया था. I was like, Wow. not bad. That's great. मीन्स उसके एक महीने पहले आई वाज लाइक मेरे पास काम ही नहीं है. मैं मेरे पापा को बोल रही हूँ, पापा बोलते बेटा जॉब कर लो, तुमसे ना हो पाएगा. लेकिन नहीं, मैं करूँगी. और उसके बाद ही उसके नेक्स्ट मंथ ही मैंने आई थिंक 1 to 2 lakhs मैंने किया था. उसके बाद फिर से मैं बेरोजगार हो गई थी. बट वट मैटर्स इज कि आप कंटेंट क्रिएशन कर क्यों रहे हो वो आप अपने आप से पहले क्वेश्चन करो. You have to जस्ट love बिकॉज what you कोई do. और कर रहा है इसलिए आपको करना है, वो नहीं. आपको अगर जेन्युइनली क्रिएट करना, इफ़ यू आर अ क्रिएटिव पर्सन एंड आप चाहते हो कि आप ये सारी चीज़ें करो, तो आप स्टार्ट कर सकते हो. और अगर आपके मुझे लगता है व्यूज़ बहुत मैटर करते हैं, इंगेजमेंट मैटर करती है. और आज के टाइम पे इफ़ अ ब्रांड वर्किंग विद यू लाइक अ फैशन ब्रांड और अ ब्यूटी ब्रांड, फीमेल इंगेजमेंट ज़्यादा, फीमेल परसेंटेज कितना है आपका, वो ज़्यादा मैटर Tier करता है. 1 city से कितने लोग हैं? मेरे नहीं
the brand is going to see. Yeah, I was like, या मेरे- तुम्हारा डेमोग्राफिक कितना Yeah. स्ट्रांग क्योंकि वो मांगते हैं इनसाइट्स Yeah. ब्रांड्स आज के टाइम पे इनसाइट्स मांगने लगे डजंट मैटर इफ यू हैव अ 2 lakhs फॉलोअर और व्हाटएवर इनसाइट्स दो उन्हें इनसाइट्स उनके लिए बहुत मैटर करती है कि लाइक क्या एज ग्रुप के आपको लड़कियां Yeah. फॉलो कर रही हैं कितना परसेंटेज है आपकी फीमेल ऑडियंस कितनी है तो वो सारी चीजें वो लाइक वो भी नोटिस करते हैं कि आपके पेज पे एड्स कितने चल रहे हैं क्या आप प्रमोट लाइक आप पेड कर रहे हो ये सारे व्यूज आपके पेड हैं इसके अकॉर्डिंगली दे पे यू एंड हाँ अगर आपके ऐसा कुछ है 1.5 लाख 2 लाख तो आप आराम से आई थिंक 10 to 15 लाख समथिंग आप अर्न कर सकते हो Yeah. So coming to you, Kanisha, what is the highest amount of money that you have made in a month? 5 lakhs. Wow. Yeah. So Crazy. not every time. but Yeah, there was of this course. one. Yeah, I think that's the story of every creator. Every कि कभी creator. बहुत Yeah. पैसा आता है और कभी बिल्कुल नहीं आता है, Yeah. and then it's a But you know, up and down journey. this was the time when there were not so many creators in the market. I think this was 2024 start, where I was charging almost like 1.5 lakhs for a reel. But क्योंकि अब इतने सारे creators like इशिता also said कि क्योंकि undersell इसलिए किया जा रहा है creators को because market में Quantum बहुत बढ़ गया. creators हो गए Quantum हैं. बढ़ गया. So how can a creator pitch themselves to a brand? What is the right way according to you? So I think you have to keep making content and let brands approach you. Because when a brand approaches you, then there are chances they will pay you more or pay you at all. But if you approach a brand, then brands do not pay in cash. They would want to do a barter. Like for example, I only approach brands when I want to travel somewhere. So I approach hotel brands and or if I need something like when I was making my house, I had approached a lot of interior designing brands because I wanted घर का सामान अभी ना वो हो गया budget पूरा हो गया so I wanted to approach those kind of brands or some electronic brands. But I try not to approach brands now because if I am approaching now then they will always undervalue me. So I make sure that brand approaches me. And if a creator wants to approach brands, then they can also register themselves with agencies like Viral itself or any big agency. They can just, register themselves or on platforms, how she said, so that, at least you can start So making which your name. agency are you working with? As a creator, I was onboarded with Opera, but right now I am working as a, one woman army. I'm independently working because Along with the GPT. along with the GP. Because I have realized Secrets that revealed. I think I don't know if maybe it is true. I am number one, and being number one, we do not like to take orders and we like to take our own decisions. Yeah. So, as much as I love to work with agencies as a creator exclusively, it has never worked for me. Yeah. It's been 3-4 times. And they have been great. I have been great in the time we were together. But when it comes to taking decisions, मुझे ऐसा लगता है मुझे decision लेना है eventually when it comes to taking decisions of money. Yeah. और but agencies के साथ क्या होता है, if you are exclusive with them, they will be like हम quote करेंगे आपके लिए कितना quote करना है, and they take the final decision and they don't keep you in the loop. You know, you are, because brands cannot directly talk to you. But I am a brand's creator. Yeah. I have to talk to brand before creating content. If I don't talk to a brand before creating content, I lose it. कि यार अब मुझे क्या बनाना था exactly? Because then I understand their point of view better. So even if I'm working with agencies, I tell them, can you please get a brand POC on call so that I know what they want from me. Yeah. But when you are exclusive with agencies, that's not an option because your manager does all the back and forth. Sure. So that really doesn't work for me. मुझे ऐसा लगता है मुझे loop में रहना. So summarizing the conversation, if somebody is starting today from 0 followers, 0 viral videos, then one tip each that you want to share with them. I think I would just want to say that if you think that you've got it, then just go for it. Just start creating content and keep making videos. If you are new to it as well, it doesn't matter. Followers these days doesn't matter. In fact, in this Flipkart event also, there was a category only for nano creators. So even you have 1,000 followers to 10,000 followers or even less than 1,000, keep creating content. आपको नहीं पता कब कौन सा वीडियो कौन सा content piece viral हो जाएगा. So just keep trusting yourself, keep experimenting with niches, and one day, if you've got it, you will get it. Yeah. So I would say ki be authentic and do it for yourself.
नॉट बिकॉज कि कोई और कर रहा है इसलिए आपको करना है, एंड जितना रियल रह सकते हो उतना रियल लो. से नो टू बाटर, बिल्कुल बाटर नहीं करना. एंड देन आई वुड से कि जस्ट स्टार्ट डूइंग. ये नहीं कि मेरे पास गैजेट्स नहीं है, मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है. मैंने एंड्रॉयड फ़ोन, वीवो के फ़ोन से स्टार्ट किया था कंटेंट बनाना. उसका कैमरा क्वालिटी बहुत गंदा था, बट आई स्टार्टेड. मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, बिकॉज जितना मैं उस टाइम पे अफोर्ड कर पा रही थी मैं कर रही थी, उसे यूटिलाइज कर रही थी. तो इफ़ यू वांट टू मेक कंटेंट, just go for it. Don't think about it कि चलेगा नहीं चलेगा. And the main point, never ever compare yourself with anybody. Yeah. बिकॉज आज अगर आप किसी बड़े इन्फ्लुएंसर को देख रहे हो तो वो उतना हार्डवर्क करके वहाँ पहुँचे हैं, एंड आप भी वहाँ पहुँच सकते हो. ऐसा नहीं कि नहीं पहुँच सकते, आप पहुँच सकते हो. कीप योर पेशेंस, कीप योर काम, एंड जस्ट मेक कॉन्टेंट वट एवर यू वॉन्ट. Awesome. Quite a lot of golden nuggets over here. Okay, awesome, Kanisha. Thank you, Shita. Thank you, Kanisha, for coming on Viral Creators podcast. I'm sure the listeners are going to have a fun time watching this particular episode because of all the insights that you have shared about your brand collaboration and how can one start monetizing content and how much can someone who is sitting at the comfort of the house, you have motivated them to start creating content. So what is that one last message that you want to share with the audience for this podcast? Just keep doing what you're doing. You are amazing in your own self, and people will love you for who you are. So I would say कि this is my first podcast. So guys, देखो कंटेंट क्रिएशन कहाँ पहुँचा देता है. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी पॉडकास्ट में आके ऐसे बात करूँगी. So this is a very like huge thing for me. एंड सो अगर आप ये देख रहे हो तो यू शुड स्टार्ट क्रिएटिंग. और अगर आपको लग रहा है कि आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे तो मुझे भी लगा था एक टाइम पे मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी, बट नाउ आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर माय सपने पूरे होते हैं, जरूर होते हैं. यस, एंड यू विल गेट मनी आल्सो. So guys, comment down below which was your favorite segment from their expertise, and I'm sure that we are going to reply to all your comments and give a shout out to you. Thank you so much.